died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy He brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll find life's final war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives. Psalm 66 says like this: shout joyful praise to God, all the earth. Sing about the glory of His name. Tell the world how glorious He is. Say to God, how awesome are your deeds. Your enemies cringe before your mighty power. Everything on earth will worship you. They will sing your praises, shouting your name in glorious song. हिंदी में भजन संहिता 66 में इस तरीके से लिखा है: हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा का भजन गाओ, उसकी स्तुति करते हुए उसकी महिमा करो। परमेश्वर से कहो, तेरे काम क्या ही भयानक है, तेरी महासामर्थ के कारण तेरे शत्रु तेरी चापलूसी करेंगे। सारी पृथ्वी के लोग तुझे दंडवत करेंगे और तेरा भजन गाएंगे, वे तेरे नाम का भजन गाएंगे। आमीन। So praise the Lord. Good evening. Once again, I welcome you all in this evening or today's worship. The one who are with me over the Zoom and the individuals who are watching us over the Facebook and YouTube. May God bless you and fulfill all your desires and expectations in this evening, in His wisdom and His acceptance.
एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ जूम पे हैं या जितने लोग भी इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को बहुतायत से आशीषित करे और आपकी उन सभी आशाओं को, अपेक्षाओं को अपनी मर्जी में और अपने प्लान में पूरा करे। आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर एक पैसेज 1 सैमुएल चैप्टर 17 वर्स 26 to 36 अगर हम देखते हैं और उसको समराइज करके मैं पढ़ूंगा। डेविड न्यू वेरी वेल दैट द लॉर्ड इज लिविंग गॉड, फॉर ही हैड द एक्सपीरियंस गॉड्स पावर इन हिज यंग लाइफ. द लॉर्ड हैड हेल्प्ड डेविड overcome several dangerous situations in the past, and so when Goliath challenged the army of Israel, David knew the living God could deliver them. The living God made David an instrument of life, and he defeated Goliath and rescued the Israelites from the Philistines. The living God continues to work in the lives of believers today through the Holy Spirit. Let us thank him for infusing us with life and granting us power to overcome the evil one. So परमेश्वर आज भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में हमारी जिंदगियों में, हमारे कामों में, हमारे रास्तों में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में हमारी मदद करता है। हम कमजोर हो सकते हैं लेकिन परमेश्वर हमारे जीवनों में कमजोर नहीं हो सकता है। आमीन। सो आइए आज की आराधना को शुरू करते हैं। सामर्थी पिता प्रभु परमेश्वर, एक बार फिर से आज की शाम को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जितने लोग भी आज की इस वर्शिप में हैं परमेश्वर, हम इस बात का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने अपने उस सांसारिक समय में से अपने लिए प्रभु समय ना निकाल के वरन आपके लिए समय निकाला है परमेश्वर। हम जिस मनोस्थिति में है परमेश्वर, जिस हाल में भी है प्रभु यीशु, हम आपके पास आते हैं। वी सरेंडर बिफोर योर थ्रोन ऑफ गॉड परमेश्वर। होने दीजिएगा परमेश्वर की आज की शाम हमारे जीवनों के लिए, हमारे कामों के लिए वो मुबारक शाम ठहरे परमेश्वर, कि हम संसार में ना देखने वाले हो सके वरन आपकी तरफ देखने वाले हो सके परमेश्वर। जितने लोग भी इस वक्त जूम पे हैं परमेश्वर, या जितने लोग भी फेसबुक और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं प्रभु यीशु नासरी, आप हर एक को पवित्र आत्मा का मसा दीजिएगा परमेश्वर। हमारे घरों से, हमारे जीवनों से उन कमी और घटियों को दूर करिएगा परमेश्वर जो आपकी उपस्थिति में असंभव है परमेश्वर। क्योंकि हमें पता है परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है परमेश्वर, कि जहां पे आपकी उपस्थिति है वहां पे परमेश्वर आपका प्रकाश है, आपकी लाइट है और आपकी भरपूरी है जीवन की परमेश्वर। आज के वचन को प्रभु जब हम जाते हैं, मनन करते हैं, आप हमें ऐसे मन और बुद्धि दीजिएगा कि हम उसको समझने वाले हो सकें और उसको ग्रहण करने वाले हो सके। आज जब हम गीतों को गाते हैं परमेश्वर, वो आपको भाने वाले हो सके परमेश्वर। इस पूरी वर्शिप को और हर एक जन को परमेश्वर आप अपने लहू के बाड़े में लें, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में भरे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से। आमीन, आमीन, आमीन। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच टू जॉइनिंग अस इन दिस इवनिंग। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। काफी सारे लोग इस वक्त जूम पे भी हैं और मैं देख पा रहा हूँ यूट्यूब पे भी काफी सारे लोग हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रेज एंड वर्शिप में हमारे साथ अंशिमा पॉल बरेली से हैं, वो अगुवाई करेंगी। और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में भाई आदित्य केनित आइजकर साहब लेकर के आए हैं, जो कि देहरादून से हैं। परमेश्वर आपको भी और आपके पूरे परिवार को बहुत से आशीषित करे। सो आइए परमेश्वर की इस आराधना में आगे बढ़ते हैं और अब मैं इनवाइट करूंगा अंशिमा को कि वो प्रेजेंट वर्शिप में हमारी अगुवाई करें। अंशिमा, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा राजा है सामर्थ्य भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। यहोवा राजा है सामर्थ्य भरा, अनादि परमेश्वर वो ना टलेगा। युगों से युगों तक एक ही है आजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही पैगाम सदा। राजा समुंदर की लहरों से यहोवा है महान, पर्वत
पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम, समंदर की लहरों से यहोवा है महान। पर्वत की ऊंचाई से ऊंचा यीशु नाम, युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह, वो है महान सर्वशक्तिमान, उसकी हुकूमत और उसका ही पैगाम सदा। राजा भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा, मेरे लिए तू आया, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए मरा जी उठा। दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा, दोस्त है तू मेरा यीशु, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा, प्यार है तू मेरा यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ, मैं तुझसे यार रखता हूँ यीशु। थैंक यू। थैंक यू सो मच अंशिमा। एंड यस लिटिल वन, आज आपने बहुत साथ दिया दीदी का, मे गॉड ब्लेस यू। और आप ऐसे ही परमेश्वर में बढ़ती रहें और खूब सारी प्रैक्टिस करें। मे गॉड ब्लेस यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच अंशिमा एंड लिटिल एंजल। एंड अब वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर की आराधना में आगे बढ़ेंगे और उन प्रार्थना निवेदनों की तरफ जाएंगे जो पूरे सप्ताह हमारे पास में आते हैं। हम दुआ करेंगे अपने देश के लिए, अपने सभी लीडरांस के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट साहिबा, चीफ मिनिस्टर और सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एंड नेबरहुड कंट्रीज के लिए। और खास करके दुआ करेंगे हम जो अभी इजराइल में सिचुएशन खराब हो रखी है, परमेश्वर उस देश पे, परमेश्वर के देश पे अपनी आशीष और अनुग्रह करे। और हम दुआ करेंगे नेहा शाह बहन के लिए जो कि उनकी उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज आ सके। हम दुआ करेंगे भाई अरुण सैमल साहब के लिए कि उनकी सर्जरी प्लान हुई है आने वाली 23 या 25 तारीख में, किसी एक दिन हो सकती है। तो हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ था और परमेश्वर ने अपनी चंगाई में रखा है, काफी हीलिंग है और कीमोज हुई है, एक माइनर सर्जरी है। तो परमेश्वर इस लास्ट हर्डल को भी अपनी अपनी आशीषों से दूर करेगा। एंड हम दुआ करेंगे भाई अभिषेक हंस के लिए कि उनका कुछ गवर्नमेंट से कंपनसेशन आना है लैंड का, कि परमेश्वर उनको सही समय पे दे सके। हम उनके बेटे के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए एक अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए दुआ करेंगे। और हम दुआ करेंगे इस वक्त दीप्ति दी की आंटी के लिए कि काफी बुजुर्ग हैं और उनको लंग्स में एक्सेसिव लिक्विड हो गया है
भर गया है, तो परमेश्वर इस उम्र की दराजी में भी उनको विश्वास योग्य बना के रखा हुआ है। परमेश्वर उन्हें भी सामर्थ्य दे, और उनके डैडी के लिए भी दुआ करेंगे कि आप उन्हें भी अच्छा स्वास्थ्य दें। और हम दुआ करेंगे, पिछले दिनों जैसा कि कभी कभी होता है कि हम लोग संसार में रह करके अपने अपने उन एक्सपेक्टेशन को नहीं छोड़ने पाते हैं, और परमेश्वर की बहुत सारी जो ओबीडियंस होती है उसको नहीं पूरा कर पाते हैं। तो मैं दुआ करूंगा कि, और आप सब भी दुआ करें कि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ ऐसे डिसीजन लेकर के आता है जो एज एन ह्यूमन हमें नहीं एक्सेप्ट हो रहे होते हैं, और हम अपनी सही जगह को छोड़ने में असमर्थ होते हैं। हमारा वो चाहे कोई एक नई जॉब हो या कोई एनी जो चीज हमें अच्छी लग रही होती है सालों से। तो हम दुआ करेंगे कि पिछले दिनों में बहुत सारे पास्टर्स के ट्रांसफर हुए हैं अलग अलग जगहों पे, लखनऊ रीजनल कॉन्फ्रेंस में। और तो परमेश्वर उन सभी पास्टर्स को जो अपने अपनी एक नई आज्ञा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और पुरानी जगह पे बैठे हैं, परमेश्वर उनको अपनी बुद्धि और विजडम से भरे, और वो अपने नए नए असाइनमेंट को लेने वाले हो सके। और हम दुआ करेंगे अपने कलीसिया में सभी बुजुर्गों के लिए, और कि परमेश्वर उन्हें अपनी सामर्थ्य में रखे, अपने अपने स्वास्थ्य में रखे, और अच्छा स्वास्थ्य उन्हें दे। और हम दुआ करेंगे सिस्टर मीनू की बहन के लिए कि परमेश्वर उन्हें भी चंगाई बख्शे। पिछले दिनों हम लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं और वो चंगाई उनको रिसीव हुई है। और हम दुआ करेंगे अपने पासबान के लिए और सभी मिशनरीज के लिए कि परमेश्वर उन्हें भी अपनी सामर्थ्य में रखे, उनकी सभी जरूरतों को पूरा करे। हम अपनी कलीसिया में पाए जाने वाले सभी बीमार व्यक्तियों के लिए भी दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें भी इस बीमारी से जल्द निजात दिलाएं। और हम अपने यूथ के लिए दुआ करेंगे। और मैं देख सकता हूं, मैंने अभी एमपी सिंह साहब को भी देखा था जूम पे, तो इस बात का धन्यवाद भी करेंगे कि पिछले दिनों एमपी सिंह साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, बट परमेश्वर ने उन्हें अपनी सामर्थ्य में खड़ा किया है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देंगे। और मैं दुआ रिक्वेस्ट करूंगा इनफैक्ट शालिनी जी आपसे कि आप अपने आप को अनम्यूट करें और इन विषयों के लिए प्रार्थना करें प्लीज। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए खुदावंद। ये जो मुबारक शाम है पिता परमेश्वर, जो आपकी तरफ से निर्धारित है खुदावंद। जब हम सब इकट्ठा हुए हैं खुदावंद, शुक्रगुजारी के लिए, धन्यवाद के लिए, प्रेस के लिए पिता परमेश्वर, और उन सब प्रार्थनाओं के विषय के लिए खुदावंद जो आपकी हुजूरी में रखने के लिए, क्योंकि हमें पता है पिता परमेश्वर आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा खुदावंद। और हमें पता है हम जब मांगते हैं खुदावंद तो आप हमें फौरन देते हैं, क्योंकि जब हम हाँ और आमीन करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं खुदावंद। और सचमुच में खुदावंद होली क्रॉस जो जरिया, जो बीज जो आपने बोया है पिता परमेश्वर, कि जब हम सब मिलके एकत्रित होते हैं, आपको प्रेस करते हैं, आपकी उपस्थिति में बैठते हैं, और आपकी प्रेजेंस हम सबके साथ है। जितने लोग भी पिता परमेश्वर आज प्रार्थना सभा में जुड़े हैं, जो है जूम के जरिए, फेसबुक के जरिए, और लेटर ऑन खुदावंद यूट्यूब के जरिए पिता परमेश्वर यहाँ से ब्लेसिंग्स को रिसीव करेंगे खुदावंद। जो उनके घरों में कमी है, जो परेशानी है, जो तकलीफ है, वेदर वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, इमोशनल हो खुदावंद, हमसे पिता परमेश्वर, हमें शायद मुझे पता ना हो, लेकिन खुदावंद आपसे कुछ भी नहीं छुपा हुआ है, क्योंकि वचन में लिखा है मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लाने वाले हो सको खुदावंद। तुमने नहीं चुना है खुदावंद, सचमुच में आपने चुना है। और आपके सारे वायदे पिता परमेश्वर एक एक परिवार के बीच में पूरे हो रहे हैं खुदावंद। वो उसे रिसीव कर रहे हैं खुदावंद, उसे उस ब्लेसिंग्स को फील कर रहे हैं, और टेस्टमनीज के जरिए वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं पिता परमेश्वर। हम खासकर अपने देश के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं खुदावंद। दिस कंट्री, दिस इंडिया इज ब्लेस्ड बाय यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज द लीडरशिप पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट में जो जो मिनिस्टर्स हैं खुदावंद, जो लीडरशिप पोजीशन है, इज बीइंग गिवन बाय यू लॉर्ड। सो वी नीड द विजडम पिता परमेश्वर, वी नीड द गॉडली विजडम इन देम, ताकि पिता परमेश्वर जो लीडरशिप पोजीशन हुई, जो विजडम है खुदावंद, वो गॉडली हो, आपकी तरफ से हो पिता परमेश्वर, दुनियावी ना हो, ताकि जो भी वो डिसीजन ले पिता परमेश्वर इस पूरे देश के हित में हो, इस देश में जितने भी लोग हैं उन सब के हित में हो खुदावंद। जो कमी है, घटी है इस देश में पिता परमेश्वर, जो भी हो, जिस किसी के घर में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, एजुकेशनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम, पिता परमेश्वर वो दूर होगी, क्योंकि पिता परमेश्वर जो लीडरशिप है खुदावंद, दैट इज ब्लेस्ड बाय यू, द पोजीशन हैज बीन गिवन बाय यू। सो आई नो लॉर्ड द वे दे आर गोइंग टू वर्क will be provided and will be guided by you Lord Jesus. I know this
us, because we all are praying together. We all are sitting before you and you are in us, Lord. Your presence is here, Lord, and we know it will be fulfilled. ये पूरा हो जाएगा पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खासकर पास्टर्स के लिए, मिशनरीज के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने उनको जो वो तोड़ा दिया, जो गिफ्ट दिया है खुदावन, जो बर्डन दिया है पिता परमेश्वर, मिनिस्ट्री का, मिनिस्टर करने का, लोगों को आपके बारे में बताने का पिता परमेश्वर, उन सारे पास्टर्स को, उनकी फैमिलीज को, मिनिस्ट्री जो कर रहे हैं, अपने अपने घरों को छोड़ के पिता परमेश्वर दूसरे दूसरे लैंड में जाके मिनिस्ट्री कर रहे हैं, उन सब के फैमिलीज को और उन सब पास्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, उनको एक अच्छी सेहत दीजिए, वो गॉडली विजडम दीजिए, और हर तरीके की आजमाइशों से, हर तरीके की वो शैतानी चालों से पिता परमेश्वर उन्हें बचा के रखिए, ताकि खुदावन जब वो वचन आप शेयर करें, जब वो बताएं आपके बारे में पिता परमेश्वर, तो आप उनके जरिए लोगों से बात करें, खुदावन बदलाव आए, क्योंकि आप ये चाहते हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं खासकर उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो इस वक्त बीमार है खुदावन, सचमुच में खुदावन आपके नाम को पुकारते हैं, तकलीफ में खुदावन, and you know that Lord Jesus। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ खुदावन, स्पेशली अरुण भैया के लिए खुदावन, जो कि उनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी होनी, मे बी ऑन 23rd और 25th लॉर्ड जीसस, हील हिम कंप्लीटली खुदावन। जिस तरीके की उनकी स्थिति थी और आज की स्थिति खुदावन, वो पूरी तरीके से हील हो गए, लेकिन खुदावन जो भी वर्ल्डली चीजें, जो सर्जरी है पिता परमेश्वर, जो भी रेक्टिफिकेशन के लिए चीजें हो रही है पिता परमेश्वर, उनको पूरी तरीके से हील करिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं दीप्ति दीदी की आंटी के लिए, लिसी आंटी के लिए पिता परमेश्वर, जो उनको ऑन एंड ऑफ हार्ट की प्रॉब्लम की वजह से जो फ्लूइड जमा हो रहा है उनके लंग्स में खुदावन, उनको कंप्लीटली हील कीजिए। इस उम्र की दराजगी आपने उनको दी है, एक खूबसूरत उम्र दी है, एक शी इज अ ब्लेसिंग टू द फैमिली, शी इज अ ब्लेसिंग टू द कॉन्ग्रीगेशन, टू द चर्च लॉर्ड जीसस, प्लीज हील हर कंप्लीटली पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं मीनू जी के लिए खुदावन, उनकी डायबिटीज के लिए, उनकी जो पिछले दिनों ऑन एंड ऑफ प्रॉब्लम बीमारी हो रही थी खुदावन, आज जब उनको हम देख रहे हैं, शी स्माइलिंग, शी इज थैंकिंग यू, शी इज प्रेजिंग यू लॉर्ड जीसस। जो भी और बची हुई हिंड्रेंस है, जो भी बची हुई प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, वो दूर करिए खुदावन। जो इस वक्त वो प्रार्थना में आपकी हुजूरी में मांग रही है खुदावन, उनकी सुनिए खुदावन, उनकी सुनिए और उनको दीजिए पिता परमेश्वर। हम उनकी सिस्टर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से पिता परमेश्वर वो हॉस्पिटलाइज्ड है, बीमार है खुदावन, वी नो शी इज हील्ड लॉर्ड, लेकिन एक बड़ी गवाही आने वाली है उस परिवार से, उस बहन से खुदावन। आई नो पिता परमेश्वर वो जल्द से जल्द डिस्चार्ज होंगी और उस टेस्टिमनी के साथ डिस्चार्ज होंगी दैट यू हैव हील्ड हर कंप्लीटली। पिता परमेश्वर हम रियली धन्यवाद करते हैं जब हम आज MP सिंह अंकल को और गुड्डी दी को देखते हैं पिता परमेश्वर, ही इज कंप्लीटली ही, वी वांट टू प्रेज यू, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस, बिकॉज पिता परमेश्वर आपने उनको पूरी तरीके से चंगाई दी खुदावन। सचमुच में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपको पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं अभिषेक हंस के फैमिली के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके बेटे, उनकी वाइफ के लिए पिता परमेश्वर, उनको कंप्लीट हीलिंग दीजिए। जो भी ऑन एंड ऑफ उनके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, बीमारी हो रही है खुदावन, उसको हमेशा के लिए, उस खुदावन उस बंधन को तोड़िए और वो बीमारी वहां से हमेशा के लिए हटाइए पिता परमेश्वर। उनकी जो लैंड की जो खुदावन, उनको जो गवर्नमेंट से जो मनी मिल रहा है खुदावन, जो भी हिंड्रेंस है, जो भी रुकावट है, जो नहीं मिल पा रहा है टाइमली, वो उनको जल्द से जल्द मिलने पाए पिता परमेश्वर। जो डिसीजंस कुछ मेथोडिस्ट में बिशप साहब ने जो लिए हैं डिसीजंस पिता परमेश्वर, वो आपकी मर्जी के तहत पूरे हों खुदावन, क्योंकि दैट पोजीशन व्हिच यू हैव गिवन टू बिशप इज आल्सो अ लीडरशिप पोजीशन। You have chosen him and you have given him that burden to take the decision Lord Jesus। तो वो डिसीजन जो उन्होंने लिया है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, चर्चेस के लिए पिता परमेश्वर, उसको लोग उसे सुनने वाले हो सके पिता परमेश्वर, आपके भय में आके सुनने वाले हो सके। जहां जहां भी जो डिसीजन है पिता परमेश्वर, नथिंग हैज बीन हिडन बाय यू लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम खास कर प्रार्थना करते हैं मिनिस्ट्री के लिए, इस मिनिस्ट्री होली क्रॉस मिनिस्ट्री के लिए पिता परमेश्वर, जो 2.5 साल पहले जो आपने तोड़ा खुदावन दिया था, जो आपने बीज बोया था खुदावन, वो खूबसूरती से आप सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ रहा है, वो वचन बढ़ रहा है, लोग सुन रहे हैं, आपका वचन पहुंच रहा है क्योंकि आप बात कर रहे हैं खुदावन। आज मैं धन्यवाद करती हूँ आदित्य के जीवन से खुदावन, कि दैट आदित्य ने खुदावन ये डिसीजन लिया पिता परमेश्वर कि आज वो वचन शेयर करेंगे खुदावन। सचमुच में इतना आज मुबारक दिन है, धन्यवाद का दिन है कि जब हमारे यंग बच्चे पिता परमेश्वर आगे बढ़ते हैं, वचन को शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन जब आज आदित्य बोलेंगे तो आप उनके जरिए लोगों सबसे बात करेंगे जो आज आपको सुनने आए हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ नेहा के जीवन के लिए खुदावन, कि नेहा के दिल में पिता परमेश्वर कई प्रार्थनाएं के विषय हैं, कई
हलचल है, कई बातें हैं खुदावन जो वो आपसे रोज कर रही हैं, कई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए वेट कर रही हैं, वो आपसे प्रार्थना कर रही हैं खुदावन, वेदर वो प्रोफेशनल हो, इमोशनल हो पिता परमेश्वर। और खुदावन कई ऐसी चीजें हैं जो शी सीकिंग फ्रॉम यू लॉर्ड, एंड आपको पता है पिता परमेश्वर, प्लीज शी हैज गिवन सम टाइम टू इट लॉर्ड जीसस, हेल्प हर पिता परमेश्वर, जो वो मांग रही है उनको दीजिए खुदावन, दीजिए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम हम फिर मिले प्रार्थना में तुझसे खुदावन, उस टेस्टमनी को वो शेयर करें, उस शुक्रगुजारी को शेयर करें जो उनके जीवन में काम हो। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ सिस्टर पूनम के हस्बैंड विकास भाई के लिए खुदावन, जो वो भी एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए प्रोफेशनली देख रहे हैं खुदावन, उनको एक नई अपॉर्चुनिटी की तलाश हो है पिता परमेश्वर। कई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, उन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए, उनको एक नई जॉब मिल पाए पिता परमेश्वर, एक अच्छी जॉब मिल जाए जो योजना पिता परमेश्वर आपके तहत हो, आपने प्लान करा हुआ, क्योंकि आई नो लॉर्ड यू नो द फ्यूचर, you know the future that what is best for brother Vikas, and soon he will receive that Lord Jesus, we know that, because खुदावंद आज तक जब भी हमने जो भी मांगा है खुदावंद, आपने मांगने से पहले दिया है, और खुदावंद सचमुच में हम बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मैं अपने लिए, आशीष के लिए, निलिशा के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंद, जो गिफ्ट, जो आपने बर्डन, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने जो काम दिया है खुदावंद, उसको उस तरीके से करें जिस तरीके से आप चाहते हैं वो हो पाए खुदावंद। हर सैटरडे जब वक्ता लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, वचन शेयर करते हैं, आपके जरिए पिता परमेश्वर वचन पहुंचता है, आप उनसे बात करते हैं, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस पूरी मुबारक शाम को खुदावंद आपकी हुजूरी में रखते हैं, शैतान की हर चाल को पिता परमेश्वर विफल कीजिएगा, ताकि कोई भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम ना हो, किसी के कंप्यूटर में, किसी के घर में बिजली ना जाए, कोई भी ऐसी हिंड्रेंस ना आए पिता परमेश्वर की वचन पहुंचने में रुकावट आए, बल्कि खुदावंद वचन जो है सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिल की गहराइयों तक पहुंचे, और सिर्फ खुद के दिल की नहीं बल्कि दूसरों से भी हम शेयर करें खुदावंद। इस वचन को रुकने मत दीजिएगा, क्योंकि खुदावंद आपका वादा है कि वचन और फैलेगा, और हमें पता है खुदावंद ये जो होली क्रॉस मिनिस्ट्री है, ये योजना आपकी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदावंद वो कलाम पहुंचे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका आना, आपका आगमन बहुत जल्द है खुदावंद, और हम सबको तैयार रहना है पिता परमेश्वर, हम सबको तैयार रहना है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवनों को बदलने के लिए भी खुदावंद। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं शाम के लिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते इस दुआ को सुनिए और प्लीज कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच शालिनी जी, मे गॉड ब्लेस यू। और अब ये वो समय होगा कि जब हम लोग परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और जिसके लिए मैं आदित्य को इनवाइट करूंगा। एंड प्रायर टू दैट I'll read one verse from Job chapter 23 and verse 10 says, but he knows where I am going, and when he has tested me like gold in a fire, he will pronounce me innocent। अगर मैं अय्यूब की पुस्तक उसका 23वां अध्याय और उसका 10वां वचन पढ़ता हूँ, वहां लिखा है, परंतु वो जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूं, और जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। आमीन। So I'll give you this verse today evening, each one of you। परमेश्वर हमारे फेथ को, हमारे विश्वास को श्योरली टेस्ट करेगा। उस टेस्ट का पेपर किसी का हो सकता है ज्यादा टफ हो और किसी का कम टफ हो, बट टफ जरूर होगा, और बिना उस टेस्टिंग के, बिना उस एग्जामिनेशन के हम पास नहीं हो सकते हैं, और हमारी क्लास चेंज नहीं हो सकती है। सो डोंट बी फेयर कि हमारे घर में बीमारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, किसी तरीके की परेशानी है। दैट इज द फर्स्ट साइन कि परमेश्वर ने हमें एग्जाम में बैठने का मौका दे दिया है। नाउ रिजल्ट इज गोइंग टू बी इन आवर हैंड कि हमारी प्रिपरेशन कैसी थी। सो इस बात के साथ मैं भाई आदित्य को इनवाइट करूंगा। आदित्य, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में लेकर के आइए। थैंक यू सो मच। Thank you, Ashish uncle. Ashish uncle, I hope my voice is clear. Yes, very much. Okay, thank you. So, good evening everyone. I am Aditya from Dehradun, and आपने हो सकता है मुझे देखा हो, आपने हो सकता है मुझे पहले भी सुना हो सकता है आपने कभी आप मुझसे मिले हो, बट टुडे खुदा की मर्जी में आज हम सब एक साथ हैं, सब एक खुदा के आत्मा में एक हैं, एंड धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, और हर एक चीज खुदा के हम हाथ में देते हैं। एंड सो बिफोर आई स्टार्ट,
I come from Dehradun. I'm studying right now. And before I start, छोटी सी टेस्टिमनी है मम्मी की. तो बहुत टाइम पहले सितंबर में मम्मी को सेंसिटिव टूथ हो गया था. सेंसिटिविटी थी, बहुत दर्द होता था एंड शी वुड से मैं खा नहीं सकती, मैं चाय नहीं पी जाती, कुछ इट वाज रियली एकिंग. सो फाइनली खुदा की मर्जी में हमने सोचा कि डॉक्टर को दिखाया जाए. उसके बाद हम सबने सोचा, उसके बाद पहले तो हमने सोचा पास में डॉक्टर्स को दिखा के आते हैं. और वो डॉक्टर तो ऐसे थे कि बिल्कुल थोड़ा-सा डरा सा दिया एकदम से, जो डेंटिस्ट थे. फिर दूसरे दिन हमने कहीं सोचा कि अच्छा उस वाले डॉक्टर पे चलते हैं, दैट क्लिनिक माइट बी बेस्ट. हमने कॉल करा, पूछा, तो खुदा की मर्जी में क्लिनिक वाज बेस्ट, डेंटिस्ट वाज बेस्ट. आज फाइनली सारा ट्रीटमेंट हो गया. फाइनली शी इज स्माइलिंग विद अ टूथ, ऑल राइट. एंड ऑल ग्लोरी टू गॉड. सो आज मैं आपको बताना चाहूंगा फेथ के ऊपर जो टॉपिक है. इट्स उसका जो टॉपिक मैंने चुना है इसके लिए, जो खुदा ने मुझे दिया था, इट्स वर्थ इट. इट्स वर्थ इट. एंड जो वर्स है वो है जॉन 16:33. बट बिफोर दैट, आशीष अंकल, आपने मुझसे नहीं पूछा मैं क्या टॉपिक है मेरा. मैंने आपको नहीं बताया आप मेरा क्या टॉपिक है. जो आपने वर्स पढ़ी अभी फ्रॉम जोब, मैंने उस वर्स को नहीं लिया अपने sermon में, but what I want to speak in this sermon, it is all around that verse. It is all glory of God. It is it is all God's plan. जो verse है, जो sermon खुदा ने आज हमारे लिए रखा है, it is going to light a faith, light the candle of faith in you. So before we start, हम जल्दी से दुआ में चलते हैं and let's invite Jesus. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. Thank you Father for this amazing meeting, Father, for amazing people, Father, and धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि that you are here, Holy Spirit, you are here. जितने लोग बैठे हैं प्रभु जी, उन सबके जिन जिन जगह बैठे हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप ब्लेस करें प्रभु जी, अपनी आत्मा से भरें, उस कमरे को प्रभु जी आत्मा से भरें प्रभु जी. राइट नाउ इन जीसस नेम वी इनवाइट यू, आवर प्रेशियस होली स्पिरिट. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. आप मुझे हम सबकी हेल्प करें ताकि हम sermon को समझने पाएं, एंड आप मेरी भी हेल्प करें जब मैं आपके वचन को आगे बोलता हूँ प्रभु जी. आप गाइड करें, आप लीड करें प्रभु जी, हर एक चीज में, हर एक चीज आपके हाथ में देते हैं. थैंक यू जीसस फॉर दिस टाइम. वी प्रे दिस प्रेयर इन जीसस नेम, आमीन. तो the verse for today is John 16:33. मैं आपके लिए पढ़ता हूँ. I have told you all this so that you may have peace in me. Here on earth you will have many trials and sorrows, but take heart, I have overcome the world. यहाँ खुदा जीसस ने बातें बोली हैं, वो कह रहे हैं कि I have told you that you may have peace. Have peace. Peace in me, peace in Jesus. Have peace in Jesus. Here on earth is पृथ्वी पे हमारे पास बहुत ज्यादा मुश्किलें आएंगी, ट्रायल्स आएंगे, काफी चीजें आएंगी, बट खुदा कहते हैं डोंट टेक हार्ट. दिल पे मत लेना. डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट कि अरे यार मेरे साथ तो ऐसा हो गया. नो, खुदा कहते हैं हैव फेथ इन मी, आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड. टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट फेथ. एक ऐसी चीज जो आपको बोल्डनेस देगी ट्रायल्स में. Whenever you go through trials, you will have boldness in you. Whenever you live your life, you are living your life like a warrior till you die. Live your life like a warrior. And faith, जब हम faith में जीते हैं, जब हम faith में चलते हैं, तो faith cannot be seen, cannot be sensed until and unless fear is there. जब भी trials आते हैं, जब भी कोई डर आता है, we have to understand that in the presence of fear, faith should be in us as a victory. आज दो तरह के लोग हैं. कुछ रोते रहते हैं and the others are they stay happy. जो रोते रहते हैं वो कहते हैं, oh why did this happen to me? ऐसा क्यों आया मेरी लाइफ, मेरी क्यों नौकरी चलेगी, क्यों मेरा पैसा नहीं आ रहा है. And the others are they have faith in Jesus. They know खुदा ने उनके लिए क्या करा है. They know what God has done for us and they live in that faith. चाहे उनकी लाइफ अच्छी नहीं जा रही हो सकता है उनको दिख नहीं रहा हो सकता है उनकी एक सिन में हो सकता है जोसेफ की तरह, जिस तरह जोसेफ के भाइयों ने उसको बिट्रे करा,
उसके बाद उसका गिफ्ट जो खुदा ने दिया था उसको गिफ्ट वो छीन लिया। उसके बाद उसको कुछ ट्रेडर्स को बेच दिया एज अ स्लेव। उसके बाद पोतीफर की वाइफ ने उसको मोलेस्ट करा एंड एट द एंड ही एंडेड अप इन प्रिजन। हो सकता है कि हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो। वी आर लिविंग अ लाइफ समथिंग अकॉर्डिंग टू जोसेफ की लाइफ जैसा। हो सकता है हमारी लाइफ में ऐसा हो। बट इफ यू लुक एट द स्टोरी ऑफ जोसेफ, अगर जोसेफ एक क्राई बेबी होता, रोने वाला बच्चा होता, तो हर चीज पे कहता, अरे यार क्यों मुझे बिट्रे कर दिया मेरे भाइयों ने, मेरा माई कोट ऑफ मेनी कलर्स इज गॉन नाउ, मेरी अच्छी इजी कोजी लाइफ थी भेड़ों को चढ़ाना, बढ़िया बढ़िया जाओ और वापस घर आ जाओ। नो, इफ ही वाज अ क्राई बेबी he would have cried on this, but he stayed content in his faith. आज जब हम फेथ में डाइव डीप करते हैं, आज जब हम और गहरा जाते हैं वचन में, आई वांट यू टू नो दैट रिगार्डलेस ऑफ साइज फेथ इज पावरफुल। हो सकता है आपका फेथ बड़ा हो सकता है आपका फेथ छोटा हो, बट रिगार्डलेस ऑफ एनी साइज योर फेथ इज पावरफुल। सो हो सकता है कि हम आज अपनी लाइफ में इमोशनली टेंस्ड हों, मेंटली टेंस्ड हो सकता है कि हम किसी डिस्ट्रेस में हो, किसी स्ट्रगल में हो, बट आई वांट टू टेल यू सम सॉर्ट ऑफ एक्शन हैज टू कम आउट ऑफ दैट स्ट्रगल। सम सॉर्ट ऑफ एक्शन हैज टू बी सीन, ताकि आप उस स्ट्रगल से बाहर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक दलदल में डूब रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सीधा खड़े तो नहीं रहेंगे, बस डूब रहा हूं तो गया आज, नहीं। यू विल डू समथिंग, यू विल डू समथिंग, यू विल ग्रैब अ वीड। आप किसी पेड़ को पकड़ेंगे, अपने दोस्त को कहेंगे अरे बाहर निकल। यू विल डू समथिंग, यू विल डू अ एक्शन। सो टुडे आई वांट टू टेल यू दैट फेथ इज अ प्रोसेस। फेथ इज अ प्रोसेस। जब हम सेकंड किंग्स बुक पढ़ते हैं, बुक 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 ऑफ सेकंड किंग्स, वहां हम दो स्टोरीज पढ़ते हैं। बोथ स्टोरीज एलिशा के ऊपर हैं, और बोथ स्टोरीज जो हैं, दोनों कहानियां जो हैं, वो फेथ के ऊपर हैं, एंड दे आर बैक टू बैक। पहले एक कहानी फिर दूसरी कहानी। सो पहले सेकंड किंग्स चैप्टर 4:8-37 में हम पढ़ते हैं अबाउट अ शूनेमाइट वुमन। जब एलिशा कभी शूनेम जाता था, तो जब एलिशा कभी शूनेम जाता था, तो कभी कभी एक वुमेन के घर रुकता था। वो वुमेन कहती थी, एलिशा यू हैव अ होम, कभी भी आओ, जस्ट स्टे है। तो एलिशा कह ठीक है। तो एक दिन एलिशा उसके घर में बैठा होता है, एंड एलिशा बोलता है कि एलिशा अपने सर्वेंट को बोलता है कि अरे वो जरा उनको बुला के लाओ। तो वो जल्दी से उस लेडी को बुला के लाता है, एकदम से पूछता है से कि टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू। एलिशा उनसे उस लेडी से पूछता है, टेल मी व्हाट शुड आई डू फॉर यू। तो वो कहती है कि आई नीड नथिंग, आई एम गुड, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम गुड। तो एलिशा अपने सर्वेंट से पूछता है, तुम बताओ व्हाट शुड आई गिव टू हर। तो जो सर्वेंट है एलिशा का, वो बोलता है कि इट्स कि एलिशा शी डजंट हैज अ चाइल्ड, इसके पास बच्चा नहीं, एंड जो इसका हस्बैंड है वो भी बहुत ओल्ड है। सो एलिशा क्या करता है, वो उस वुमन को ब्लेस करता है एंड बोलता है कि दूसरे साल दिस इसी समय पे यू विल हैव अ चाइल्ड। एक साल बीतता है, द नेक्स्ट ईयर कम्स एंड शी हैज अ चाइल्ड, इट्स बॉय। थोड़े टाइम बाद थोड़े टाइम बाद वो जो बच्चा होता है, वो अपने पापा के साथ खेत में जाता है काम करने, एंड वहां पर उसको सिर दर्द होता है, एंड ही फेंट्स एंड देन ही डाइज। उसकी माँ एकदम बोलती है कि कुछ करना पड़ेगा। तो व्हाट शी डज इज, वो अपने डोंकी पे बैठती है और बोलती है कि लेट्स गो टू एलिशा, आई वांट टू गो टू माउंट कार्मेल। सो वो बैठती है, जल्दी से भागती है, एलिशा को बोलती है, एलिशा डिड आई टेल यू टू रेज माई होप, डिडंट आई टेल यू नॉट टू रेज माई होप, डिड आई एवर आस्क अ सन। बोलती है कि एलिशा क्या मैं तुमसे कभी एक लड़का मांगा था, कि कभी मैंने तुमसे बोला कि आई नीड अ सन, देन व्हाई डिड यू प्रोफेसी टू, क्या व्हाई डिड यू इवन से दैट आई विल हैव अ सन। तो एलिशा उस समय समझ जाता है कि ओके, हर सन इज डेड। तो जल्दी से एलिशा अपने सर्वेंट को बोलता है, रन टू हर हाउस एंड मेरी जो छड़ी है, मेरी जो स्टिक है, मेरी जो स्टाफ है, उसको उस लड़के के ऊपर रख दो। तो इतने सर्वेंट भागता है जल्दी से और ये करता है, इतने एलिशा और वो जो विमेन है वो जल्दी से बात करते हुए माउंट कार्मेल से
शीनोमाइट पहुंचते हैं। जैसे शीनोमाइट पहुंचते हैं, जो सर्वेंट बताता है एलिशा का कि एलिशा देयर वाज नो साइन ऑफ लाइफ इन हिम। तो एलिशा बोलता है कि ऑलराइट। तो एलिशा जाता है, 2 बार दुआ करता है, एंड आफ्टर द सेकंड प्रेयर जो लड़का है वो 7 टाइम्स छींकता है, स्नीज करता है, एंड देन ही कम्स बैक टू लाइफ। दूसरी स्टोरी है नमान की, हम सब जानते हैं, हम सब ने संडे स्कूल में गाना गाया होगा, 1 डुबकी नहीं, 2 डुबकी नहीं, 7 डुबकियां, एंड नमान ठीक हो गया। कुछ इसी तरह नमान की कहानी, उसको लेप्रेसी हो जाती है। नमान सीरिया में रहता था, और सीरियन में, और जब कभी सीरिया ने इजराइल पे वॉर करी थी, तो वहां से वो एक इजराइलाइट छोटी सी लड़की लाता है एज अ सर्वेंट। तो क्या तो नमान, तो उस लड़की को पता चलता है उसकी सर्वेंट को कि नमान को कुछ हो गया है एंड ही हैज लेप्रेसी। तो वो नमान की वाइफ को बोलती है कि व्हाट इफ ही गोस टू एलिशा इन इजराइल, ही वुड गेट हील्ड। तो नमान क्या करता है, नमान अपने राजा को बताते हैं, सीरिया के राजा को। सीरिया का राजा कहता है ठीक है, तुम जाओ इजराइल के राजा से मिल के आओ। इजराइल के राजा के पास जाते हैं, इजराइल के राजा बोलता है कि अरे मैं क्या ये जो सिरदर्द मेरे ऊपर क्यों डाल दिया, मैं क्या करूंगा इसका, मैं कैसे हील कर सकता हूँ। तो उसके बाद एलिशा को पता चलता है, एलिशा बोलता है कि नेवर माइंड, नमान को मेरे घर भेजो। तो नमान को पता चलता है, फिर नमान जाता है एलिशा के घर। तो जैसे ही एलिशा को पता चलता है, एलिशा बोलता है, एलिशा बाहर नहीं निकलता, एलिशा बोलता है कि हाँ हाँ वो जो रिवर जॉर्डन है वहां जाके 7 डुबकी ले लो। नमान बिल्कुल आग बबूला कि ऐसा क्या कह रहा है ये, मैं जाके यहाँ चुपके डुबकी ले लूं, क्या सीरिया में कोई क्या सीरिया में रिवर्स नहीं है कि वहां जाके मैं डुबकी ले लूं। तो एकदम से नमान का सर्वेंट बोलता है कि सर इफ ही इज टेलिंग यू समथिंग लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। तो नमान कहता है ऑलराइट। नमान जाता है, 1 डुबकी नहीं, कुछ नहीं होता, 7। जैसे ही 7वीं डुबकी से बाहर आता है, he sees, he looks at him and उसकी सारी लेप्रेसी चली जाती है। There was something. So नमान, और जो पहले हमने पढ़ा शीनोमाइट वुमन, वो शूनेम में रहती थी। तो इन दोनों ने कुछ करा, इन दोनों ने कुछ करा। शीनोमाइट वुमन का जो बच्चा है वो मर जाता है, वो क्या कहते हैं, शूनेम से इजराइल माउंट कार्मेल भागती है। नमान सीरिया से इजराइल भागता है। दे डिड समथिंग, उनके पास फेथ था। बाइबल में लिखा नहीं कि उनके पास फेथ था, but लेकिन if we dive deep into them, deep into their story, we can understand that they had faith, and because they had faith, they had to do something. They had to do something. They had to put their faith in action to see their miracle. And don't get me wrong, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि you have to do something. मैं आपको एक work based gospel नहीं सिखा रहा हूँ आज, that you have to do something to get healed. You have to give tithe to get healed. नहीं, आप खुदा आप अपने लिए ऐसा कुछ नहीं, आप मैंने इतनों को खाना खिला दिया, नाउ आई विल गेट हील्ड, नाउ आई विल गेट इटर्नल लाइफ। नो, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट। मैं ऐसा आज कुछ नहीं बता रहा हूँ आपको। टुडे आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वी नीड टू पुट आवर फेथ इनटू एक्शन। आज हो सकता है कि आज आप किसी सिन से गुजर रहे हो, यू माइट बी गोइंग थ्रू अ टफ लाइफ। हो सकता है इमोशनली आपकी मैरिज ब्रेक हो रही हो सकता है मेंटली आप टेंस्ड हो सकता है फाइनेंशियली आप टेंस्ड हो सकता है कि आप किसी सिन में हो, एडिक्शन में हो, बट आई वांट टू टेल यू टुडे, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यू नीड टू पुट योर फेथ into action. Faith into action. जब हम जेम्स चैप्टर 2 वर्स 14 में पढ़ते हैं, वहां पर जेम्स लिखता है, my brothers, what good is it for someone to say that he has faith if his actions do not prove it? Can that faith save him? उसके बाद जेम्स 2:24 में हम पढ़ते हैं, so then as the वहां से प्लग निकालो, उस वाले में लगा दो, वाइट वाले। थोड़ा सा लाइट चली गई थी। आई होप आई एम स्टिल क्लियर। ओके, थैंक यू। ओके, तो जब हम जेम्स 2:24 में पढ़ते हैं, so then as the body without the spirit is dead, हम without the spirit is dead, without the life is dead, so also faith without action is dead. Faith without action is dead. आगे बढ़ते,
faith always has to be seen. Faith हमेशा दिखना चाहिए आपका. हम कभी ऐसा नहीं कह सकते faith always has to be put into action. हर कोई बोलता है कि put your faith into action, put your faith into action. अगर वो Shunammite woman जो थी, अगर वो ये कहती ठीक है अब तो मर गया बच्चा, ठीक है अब मैं शोक मना लेती हूँ, मैं नहीं जाती एलिशा के पास, तो क्या उसको मिरेकल मिलता? अगर नमान बोलता कि ठीक है अब तो लेप्रेसी हो गई अब तो मर ही जाऊंगा, नेवर माइंड, आई डू नथिंग, क्या वो ठीक हो पाता? नहीं. जब तक वो अपने फेथ को उसने एक्शन में नहीं डाला, जब तक वो एक प्रोसेस के अंडर नहीं गया, he wasn't able to get healed, she wasn't able to see the miracle. साथ ही साथ we as a Christian, we as a believer, हमें समझना है that our actions matter as a Christian. Our actions matter as a Christian. For example, अगर Abraham थोड़ा stubborn हो जाता और कहता मैं नहीं देता अपना बच्चा, खुदा जो करना है जो कर लो, आपको लगता है Abraham को righteous माना जाता? नहीं. अगर हम ईसाई हैं, हम क्रिश्चियंस हैं, हम बिलीवर्स हैं और हम ये बोलते हैं कि हम बिलीव करते हैं होली स्पिरिट की पावर में, हम बिलीव करते हैं होली स्पिरिट, हम बिलीव करते हैं खुदा में, लेकिन हम कभी खुदा के तौर तरीकों से जीते नहीं हैं, खुदा के तौर तरीकों से रहते नहीं, तो क्या हम कभी इटर्नल लाइफ देख पाएंगे? नहीं. क्या अगर मैं आपके सामने बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ एंड आई एम द मोस्ट अनॉइंटेड पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, लेकिन अगर मैं अपने दोस्तों के साथ जाके गाली गलौज करता हूँ, गंदी गंदी बातें करता हूँ, तो डू यू थिंक माय फेथ इज इन एक्शन? डू यू थिंक माय फेथ इन जीसस इज सीन? नो. मैं आपके सामने कुछ और हूँ, मैं अपने दोस्तों के सामने कुछ और हूँ. दैट इज व्हाई आवर एक्शंस मैटर. आज हम जो भी हैं, आवर एक्शंस मैटर एज अ क्रिश्चियन. तो हमारा फेथ जो है, इट इज ऑलवेज अलाइव व्हेन इट इज इन एक्शन. When it is in action. For example, अगर मेरे घर में एक छोटी सी किटन थी. कभी-कभी जब वो सोती थी, तो सो रही है 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए. मैं बोलता नहीं था मम्मी को कभी, लेकिन मैं बोलता था यार ये सोई पड़ी है, कुछ हो तो नहीं है, वैसे ही छोटे से होते हैं ये, डोंट नो व्हाट इज लाइफ, हमें पता ही नहीं लाइफ का कब है, अभी है कल नहीं. तो मैं हर बार देखता था यार इसका पेट ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं. मैं देखता था इज देयर लाइफ, बिकॉज वेयर देयर इज लाइफ देयर हैज टू बी एन एक्शन. तभी as a Christian, faith is our life. अगर वो life action में नहीं दिख रही है, so we are certainly dead. D-E-A-D, dead. मैं हो सकता हूँ मैं आपको smile करता हुआ दिख रहा हूँ, but if my faith is not in action, is dead. It's certainly dead. पहला point मैं आपको बताया, faith is a process. जब भी हम faith रखते हैं, faith में हमेशा we have to go under a process. Second is process is mandatory. Process is important. That process is important. For example, हमारे अंदर life है, लेकिन अगर मैं breathe नहीं कर रहा हूँ, do you think will I live? Not even for an hour. मैं 15 मिनट में ही मैं यीशु मसीह से मिल लूंगा. If I have life, I have to breathe. That action has to be seen. Likewise, it is with our faith. It has to be seen, and that process is mandatory. And this process is mandatory. एक situation लेते हैं. Let's take a situation. अगर आपके हाथ में कुछ है, Bible है, let's leave it aside and let's एक situation लेते हैं. हम सब जानते हैं बाइबल में उस स्त्री के बारे में जो 12 साल से इशू ऑफ ब्लड से जूझ रही थी. हम सब जानते हैं. अब जब वो जूझ रही थी, हम सब जानते हैं कि looking at her life, we can understand that she was struggling with something. She was struggling with an issue जो लोगों को दिख नहीं रहा था. Hidden issue था. It was hidden inside her. It was something personal. किसी को दिख नहीं रहा था. The blood was not on her face. It was hidden. लोगों को पता ही नहीं था. एंड उस इशू की वजह से वो सोसाइटी में नहीं रह सकती थी. वो लोगों के बीच में, अपने माता पिता के बीच में नहीं रह सकती थी. अकॉर्डिंग टू बाइबल, इफ यू हैड अ कंडीशन वेयर आपका ब्लड जो है वो ब्लड शेड होता है एंड वो ब्लड रुकता नहीं है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, यू आर एन आउटलॉ. आउटलॉ मतलब आउटकास्ट.
शहर के बाहर जाके रहो। जैसे कोड़ियों के लिए बोला जाता था, लेपर्स के लिए कि अब जाओ बाहर जाके रहो, उसी तरह जो ब्लीड करता था कहीं से भी, अगर वो एक कंटिन्यूअस ब्लीडिंग है, देन दैट इज, लोग उसको गंदा मानते थे और बोलते थे कि तुम्हारे साथ मत रहो, तुम बाहर जाओ। उस चीज ने आइसोलेशन में फेंक दिया था उस औरत, उस ब्लीडिंग ने, उस कंडीशन ने, एक हिडन कंडीशन है, उस एक आइसोलेशन में आ गई थी। वो बाहर रह रही थी, वो उसको उसको सोसाइटी का पता नहीं था, उसको कुछ नहीं पता। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इज दिस यू? क्या ये आप हैं? हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई सिन हो सकता है कोई मेडिकल कंडीशन हो सकता है कोई एडिक्शन हो, कोई एक मैरिज रिलेशनशिप हो जो टूट रहा हो सकता है कुछ ऐसी फाइनेंशियली आप टूट रहे हो, एंड यू कैन नॉट शो इट टू एनीवन, हिडन है। कभी कभी हम कहते हैं ना टॉर्मेंट, टॉर्मेंट कहाँ होता है? दूसरों को दिखता है? नहीं, टॉर्मेंट इज इनसाइड योर माइंड, दूसरों को नहीं दिखता। अगर मैं किसी चीज से मैं किसी चीज से टॉर्मेंट हो रहा हूँ, मैं किसी चीज से टेम्प्ट हो रहा हूँ, द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैनॉट इवन नो कि अगर मैं एक ऐसी चीज में हूँ। हो सकता है कि आप आज अपने घर में बैठे हो, आपके फैमिली मेंबर्स आपको देखते हो सकता है कि आप चर्च जाते हो, यू माइट बी द बेस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन एवरीबॉडीज साइट, बट अंदर ही अंदर हो सकता है कि आपके अंदर कोई एक ऐसा क्या कहते हैं, खोट हो, कुछ ऐसी चीज हो जो आपको आइसोलेशन में फेंक दे। हो सकता है कि वो चीज, वो सिन, वो एडिक्शन, वो मेडिकल मेडिकल कंडीशन, वो फाइनेंस रिपोर्ट आपको एक आइसोलेशन में फेंक देती है और बोल देती है कि यू कैन नॉट फिट इन दिस सोसाइटी, यू कैन नॉट फिट इन दिस चर्च, यू कैन नॉट फिट। सेटन आपको बोलता है, सेटन आपको बोलेगा, केनेथ, you have that thing in you. You have that kind of sin in you. You cannot fit in society. You cannot fit in that church. You cannot be a member of that church. You cannot walk in the Holy Spirit. अगर मैं इन चीज को बिलीव कर लेता हूँ तो मैं आइसोलेशन में चला जाता हूँ। हो सकता है कि आप भी इन चीजों के थ्रू जा रहे हो। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने ऐसा करा है एंड बिकॉज ऑफ दैट ये कॉन्सिक्वेंस है कि आप अकेला रहे। नहीं, जो हमारे लाइफ में चीजें होती हैं, जो ट्रॉमास होते हैं, सिन होता है, एडिक्शन होता है, ये हमें ऑटोमेटिकली हमें एक क्या कहते हैं, आइसोलेट कर देता है, हमें एक अपनी, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो आज मैं बताना चाहूंगा, हो सकता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम हो, बट आई वांट टू टेल यू कि जैसे उस वुमन ने क्या करा, ऐसा तो नहीं है कि उसने सुना, मतलब सुना नहीं, बस यीशु मसीह को देखा एंड बस दौड़ी चली आई एंड शी टच्ड द क्लोक ऑफ जीसस। नहीं, उसने सुना यीशु मसीह के बारे में, उसने सुना एक है मसीहा, एक आदमी है जो लोगों को ठीक करता है, चंगा करता है। एक है जिसने वो पानी को वाइन में बदल दिया था। एक है, बाइबल कहती है कि शी हर्ड अबाउट जीसस, एंड डोंट यू थिंक जब उसने सुना होगा तो कैसा हुआ होगा कि अरे एक वो आदमी है जो ठीक कर रहा है लोगों को, है लोगों को ठीक कर रहा है, इसका मतलब मैं भी ठीक हो सकती हूँ, दैट्स सो गुड, मैं भी ठीक हो सकती हूँ, दैट्स सो गुड। उसने जब सुना, उसने एक एक्शन करा। लोग, यीशु मसीह के पीछे भीड़ थी, यीशु मसीह जायरस की बेटी को ठीक करने जा रहे थे, एंड देन एकदम से वो पीछे से आती है एंड एकदम से स्नीकी होके, थोड़ा सा छुप के, चोरी छुपे होके एकदम से आके यीशु मसीह को पकड़ लेती है, एंड यीशु मसीह का जो तालित होता है, जो क्लोक होता है, उसको जाके पकड़ लेती है एंड शी गेट्स इंस्टेंटली हील्ड। आपको पता है वो हील क्यों हुई? हम सब कहते हैं जीसस, जीसस बिकॉज जीसस हैड पावर। दैट्स राइट, जीसस हैड पावर, जीसस के पास पावर थी। ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल नोइंग, बट ही इज ऑल पावरफुल, ही इज ऑल नोइंग, बट शी रिसीव्ड हर हीलिंग क्योंकि उसने फेथ करा। फेथ करने के बाद उसने अपना फेथ प्रोसेस में डाला। अगर वो प्रोसेस में नहीं डालती तो क्या वो हील हो पाती? नहीं। अगर हम उसकी जिंदगी को देखते हैं तो मैं कहता हूँ कि वो अगले 2-4 साल में मर जाता। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ कंटिन्यूअस शेडिंग ऑफ ब्लड, खून निकलता रहता, उसको वो वीकनेस आती रहती, एंड वन डे शी माइट डाई। आई वांट टू आस्क, क्या ये आप हैं? क्या आपके लाइफ में कुछ ऐसी जगहें हैं जो आप कभी हील नहीं होने दे रहे? फॉरगिवनेस,
फॉरगिवनेस। खुदा कह रहे हैं एंगर। हो सकता है कुछ लोग हैं जो एंगर, किसी ने उसने मेरे साथ ऐसा करा, आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन, आई विल नॉट मीट दैट पर्सन। एंगर। कभी कभी खुदा लोग आपसे दूर हो जाता है, लेकिन कभी कभी छोटी सी चीज के ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं, हम कहते हैं मैं उससे बात नहीं करूँ, मुंह फुला लेते हैं। जैसे वो सामने आता है हम साइड। खुदा कह रहे हैं एंगर, सिन, शेम, गिल्ट। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूँ। जो वर्ड्स, जो मुझे चीजें खुदा ने बोली वो मैं आपको बोल रहा हूँ। सिन, शेम, गिल्ट, एंगर, अनफॉरगिवनेस। खुदा बोल रहे हैं अगर आप इन चीजों में हैं, God wants you to come out of it by acting your faith out. अगर आप उस चीज को हील नहीं करेंगे तो आपकी बॉडी में वो एक ऐसा वूंड बन जाएगा जो कभी हील नहीं हो पाएगा। आप उसको छिपाते रहेंगे, छिपाते रहेंगे, छिपाते रहेंगे, एंड यू विल नेवर गेट हील्ड, बट वन डे यू विल डाई। सर्टनली। अगर हम वूंड, अगर कोई गहरा घाव होता है उसको हम ढक देते हैं तो हील नहीं होता। जब तक अगर वो ढका हुआ होता है तो हील नहीं होता, हमें उसको ओपन करना पड़ता है। So, अगर आप एक हिडन चीज से गुजर रहे हैं, आई वांट टू कॉल यू आउट एंड से गॉड इज हियर टू हेल्प यू। एक्ट योर फेथ आउट। आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको पुश करना पड़ेगा अपने फेथ को। और यह हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन हो कि दूसरे लोग जानते हो, शी इज, हमने कितनी टेस्टिमनी सुनी अभी कि दे आर गोइंग थ्रू, उनको कैंसर डिटेक्ट हुआ, उनको, उनके लंग्स में पानी भरता है, उनके कुछ हो रहा है लाइफ में। हो सकता है दूसरे लोग आपको जानते हो सकता है दूसरे लोग देख सकते हो कि फाइनेंशियली यू आर स्ट्रगलिंग, मैरिटल लाइफ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आई वांट टू टेल यू, अगर लोग जानते हैं या लोग नहीं जानते, इवन दो अगर लोग जानते हैं, यू स्टिल हैव टू पुट योर फेथ आउट। आपको अपना फेथ तब भी एक्ट करना पड़ेगा, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। ऐसा नहीं करना कि मैं अपना भाई मैं दुआ कर लेता हूँ थोड़ी ताकि दूसरे लोग बोले कि हाँ भैया दुआ करता है, नहीं। डू इट फॉर योरसेल्फ। आपको ईमान है, खुदा ने आपको हील कर दिया, सो यू हैव टू पुट योर फेथ आउट, यू हैव टू प्रैक्टिस योर फेथ आउट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। अगर आपका कंडीशन छुपी हुई है, नो मैटर आपकी कंडीशन, लोग जानते हैं, एक्ट योर फेथ आउट। एंड हमारी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं, मेरी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं। एंड जब मैं खुदा में ग्रो कर रहा था, मेरी लाइफ में देयर वर ट्रायल्स आफ्टर ट्रायल्स। मैं खुदा से हर दिन पूछता था, खुदा मैं इस ट्रायल से निकल रहा हूँ, मैं अब कौन सा ट्रायल आने वाला है, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रायल। तो खुदा मुझे दिखाते थे, मैं एक टनल से थोड़ा सा निकला, दूसरी टनल में आ गया, दूसरी टनल से निकला, तीसरी टनल में आ गया। खुदा मुझे ऐसा दिखाते हैं, मैं खुदा ट्रायल, इतने ट्रायल, इतने ट्रायल। एंड वन डे एज ए क्रिश्चियन, अच्छा चलो बाद में बताऊँ। एज ए क्रिश्चियन, एज ए क्रिश्चियन जब भी ट्रायल्स आते हैं, वी डोंट, हमें ऐसा नहीं कहना है कि अरे यार ट्रायल्स आ गए, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, वापस मैं पाप में गिर गया, कुछ हो गया। नहीं, हमें कभी भी ये नहीं देखना चाहिए कि ट्रायल्स तो बहुत बड़ी चीज है, शैतान मेरे अगेंस्ट काम कर रहा है, शैतान मेरे अगेंस्ट आ रहा है, उस शैतान ने मुझे शुगर दे दिया अपने अंदर, शुगर, शैतान ने मुझे ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, ट्रायल्स आते हैं, वी लिव इन अ ब्रोकन वर्ल्ड, वी लिव इन अ ब्रोकन वर्ल्ड, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रोकननेस वी गेट ब्रोक। हमें हेल्थ कंडीशंस हो जाती हैं, हम पाप में गिर जाते हैं, हमें एडिक्शंस हो जाते हैं। सो दीज, जो दीज ट्रायल्स आर नॉट कि बहुत बड़ी चीज होगी हमारी लाइफ में, नो, बट ट्रायल्स आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। आज मैं आपको बताना चाहूँ, आपकी अगर कुछ भी होता है, कुछ कंडीशन आई है आपकी लाइफ में, हो सकता है कि खुदा कह रहे हैं मेडिकल कंडीशंस, काफी लोग हैं जो मेडिकल कंडीशन से जूझ रहे हैं। आई वांट टू से, गॉड वांट्स टू से इट आउट लाउड कि डोंट लुक एट दैट मेडिकल कंडीशन कि अरे यार मेरे लाइफ में कुछ हो गया एंड नाउ आई हैव टू eat medicines all the day of my life. नहीं, there is an outcome, there is a solution. उस solution में, वो solution हम आगे जानेंगे। So कभी भी आप trials के through जा रहे हैं, never look at them as potholes. उनको गड्ढे की तरह मत समझो trials को, but consider them as a gift from God. And these trials, in trials में आपका faith test होता है। Everyone remember, everyone just recall जो verse आशीष अंकल ने पढ़ी,
that as like gold I will refine you. आपको पता है रिफाइनमेंट में क्या होता है? आपको पता है रिफाइनमेंट में कुछ घिसाई होती है, पानी में जाता है, ये होता है, वो होता है, आग के थ्रू जाता है, तब जाके एक चमचमाती चीज बाहर आती है, एंड देन वी वेयर इट एज नेकलेस, रिंग. सो जो गोल्ड है वो इतने ट्रायल्स के थ्रू जाता है, बट एट द एंड देयर इज समथिंग व्हिच लुक्स गुड. साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा इट इज विद अस आल्सो. सो जब भी ट्रायल्स आते हैं, डोंट लुक एट देम एज अरे यार ये क्या हो गया. नो, लुक एट देम एज अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड. एंड कभी-कभी हो सकता है कि एंड दिस हैपेंस विद एवरीवन. लेट्स बी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर. लेट्स बी ट्रांसपेरेंट. तो कभी-कभी हम सोचते हैं कि अब मैं इस पाप से बाहर निकलूंगा, अब मैं इस मेडिकल कंडीशन से बाहर निकलूंगा, अब आई विल फाइट दिस मेडिकल कंडीशन, एंड अब मैं दुआ करूंगा, अब मैं खुदा में ग्रो करूंगा. बट सडनली नेक्स्ट मोमेंट, नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट ईयर, द नेक्स्ट मंथ, आप अपने सबसे वर्स्ट जगह में होते हैं. टेम्पटेशन ज्यादा है. डॉक्टर की रिपोर्ट बोल रही है कि आपको बहुत डेंजरस चीज हो गई है, आपकी शुगर बढ़ी हुई है, आपको ये हो गया है, आपके यहाँ पानी भर रहा है, आपके ये हो रहा है लाइफ में, आपका आपको स्ट्रेस बढ़ा है लाइफ में, आपको हार्ट अटैक आ सकता है. एंड आप सोचते हैं कि खुदा मैंने तो सोचा था कि मैं तुझ में ग्रो करूंगा, लेकिन टुडे व्हाट इज हैपनिंग इज मेरी लाइफ तो उल्टी जा रही है. समथिंग इज हैपनिंग इन माई लाइफ. एंड सो हमें कभी ये नहीं सोचना है कि खुदा मैंने तो ये करा, अब शैतान मुझ पे क्या कहते हैं अटैक कर रहे हैं. नहीं, मैंने आज फेथ कर. अब फॉर एग्जांपल अगर मैं 12th में हूँ, मैंने पूरे साल, पूरे 9 महीने मैंने बढ़िया पढ़ाई करी. मैं सोचा बढ़िया पढ़ाई करूँगा, एंड एकदम से स्कूल से मैसेज आता है, स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन दैट नेक्स्ट मंथ यू विल हैव योर एग्जाम्स. तो खुदा ये क्या हो गया? मैं तो पढ़ाई करनी शुरू करी थी, एकदम से एग्जाम्स क्यों आ गए? बट जिसने पहले तो हम सोचते थे यार किसने एग्जाम बनाए, लेकिन अब एग्जाम्स आर necessary to test what you have learned. इसी तरह कभी-कभी हम सोचते हैं कि खुदा मैंने सोचा था मैं आपको प्रेज़ करूँगा, खुदा मैंने सोचा था मैं आपके लिए गाने गाऊँगा, मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई मेडिकल कंडीशन हो गई, कोई मैं पाप में डूब गया. हम सोचते हैं कि बस अब तो लाइफ खत्म है, अब एंड वी कैन डू नथिंग, बस अब तो मुझे पाप खा गया. नहीं, ऐसा नहीं हुआ है. जब हम बाइबल पढ़ते हैं, तो बाइबल में हम पढ़ते हैं कि जो फेथ है, दैट फेथ हैज़ टू एक्ट आउट, दैट फेथ हैज़ टू बी सीन. That faith has to be seen. And आपको पता है जब हम सोचते हैं आज मैं बाइबल पढ़ूंगा, कल हम बाइबल नहीं पढ़ते, कल हमें सबसे ज्यादा हम सुस्त हो जाते हैं. ऐसा क्यों आपको पता है? बिकॉज आपने जो फेथ रखा, आपने बोला कि अब मैं ये करूंगा, तो इस फेथ को अब टेस्टिंग में भी तो डालना है. ये भी तो कहना है, ये भी तो करना है कि आपने आपने मैथ्स का फॉर्मूला सीखा, चलो a² + b² = 2ab. नहीं, गलत बोल दिया. a + b होल स्क्वायर हमने फॉर्मूला सीखा, ठीक है मैंने सीख लिया. a² + b² + 2ab, ठीक है हमने सीख लिया. उसके बाद जब हम सीख लेते हैं तो हम क्या ऐसे कहेंगे बस मुझे आता है, मुझे क्वेश्चन मत देना. नहीं, आपको आता है इसलिए आपको वो क्वेश्चन मिलेगा. साथ ही साथ आपने जो वर्ड्स फॉर्मूला सीखा है, उस फॉर्मूला को आपको एक्शन में भी तो डालना है. देखें भी तो क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं. इसी तरह जब हम फेथ रखते हैं, हम कहते हैं कि आज मैं ये करूंगा और दूसरे दिन बस हालत खराब हो जाती है. क्यों? क्योंकि आपने जो फेथ रखा, उस फेथ को टेस्ट होना है. अब वो फेथ जो है वो टेस्ट हो रहा है. उस फेथ को अब आपको टेस्ट करना पड़ेगा. पहले टाइम गिरोगे, दूसरे टाइम गिरोगे, बट नहीं, थर्ड टाइम आपको समझ आ जाएगा. नाउ दिस इज द थिंग जो मुझे ट्रिप कर रही है, एंड नाउ आई नीड टू स्टैंड. दिस इज द थिंग. तभी आप फेथ रखते हो और ट्रायल्स आते हैं. तभी दैट्स व्हाई आई सेड ट्रायल्स आर अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड, बिकॉज़ ट्रायल्स refine your faith and trials come to test your faith. उसके बाद जल्दी से आखिरी की चीज हम समझते हैं, एंड लेट्स क्लोज इट. तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि दैट वी नीड टू एक्ट आवर फेथ आउट. जब हम फेथ एक्ट आउट करते हैं, सो देन वी अंडरस्टैंड. तो जब हम लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द बाइबल सेज अबाउट एक्टिंग आवर फेथ आउट. लूक 17:6 बहुत
बहुत बहुत सिंपल सी वर्स है, लूक 17:6, बट दो वर्सेस हैं जो सेम है बट स्टिल दे आर डिफरेंट. द लॉर्ड आंसर्ड, इफ यू हैड फेथ as big as a mustard seed, you could say to this mulberry tree, pull yourself up by the roots and plant yourself in the sea, and it would obey. Luke 17:6. अगर हम Matthew 17:20 में पढ़ते हैं, it's the same thing. It's the same thing. कोई difference नहीं है. It was because you haven't enough faith, answered Jesus. I assure you that if you have faith so big as a mustard seed, you can say to this hill, go from here to there, and it will go. You can do anything. खुदा क्या बोल रहे हैं? खुदा ने ये तो नहीं बोला कि तुम ईमान रख लो एंड जो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम होगी वो तुम्हें तुम्हारे फेथ को देखिए और भाग जाएगी. नहीं, हमें अपना फेथ दिखाना है. जब हम इस बुक में पढ़ते हैं जब हम वर्सेस में पढ़ते हैं दैट खुदा कह रहे हैं इफ यू हैव फेथ यू कैन से टू दैट ट्री, से टू दैट माउंटेन. से मतलब स्पीकिंग इज अ वर्ब आर एक्शंस. इफ यू हैव फेथ, खुदा कह रहे हैं इफ यू हैव फेथ put your faith into action. मतलब अगर आपके पास faith है तो then you have the authority to rebuke that medical condition of in your life. अगर आपके पास faith है तो then you need to pray, get on your knees and say, God, this is wrong in my life, I need freedom and I'm going to stand for freedom in my life. Rebuke it in Jesus name. अब ये मत करो कि मैं faith, आप ऐसा मत कहना कि कभी मैं faith, बस मैं और मेरा ईमान हम दोनों अपने सोफे पे बैठे हैं, खुदा काम कर रहे हैं. मैं और मेरा फेथ चाय पानी चल रहा है, थोड़ी सी पार्टी शार्टी हो रही है. नहीं, पुट योर फेथ इनटू एक्शन. आप बैठो और अपने फेथ से बोलो जाओ मेरे लिए ये चीज ठीक करके आओ. अपने फेथ को बोलो गो गेट दैट मेडिकल कंडीशन, गो गेट हीलिंग फॉर मी, जाओ मेरे लिए हीलिंग लेके आओ. पुट योर फेथ इनटू एक्शन. जब हम कभी नई गाड़ी लेते हैं तो हम बोला तो नहीं जाता, लेकिन हमें सबको पता है उस गाड़ी को थोड़ा सा रमा करना पड़ता है. थोड़ा सा रमा करना पड़ता है गाड़ी को, थोड़ा इंजन को ठीक करना पड़ता है, थोड़ा इंजन को क्या कहते हैं फ्लो में लाना पड़ता है. इसी तरह आपका फेथ है. आप गाड़ी में पेट्रोल भर लेंगे, शोरूम से घर ले आएंगे, लेकिन अगर आप चलाएंगे नहीं तो उसका इंजन वहीं जाम हो जाएगा. फैक्ट है, इंजन वहीं जाम हो जाएगा. इंजन में जब तक इंजन का जो पिस्टन है वो अपनी जगह नहीं बनाएगा तब तक आपकी गाड़ी स्मूथ नहीं रन करेगी. उसी तरह अगर आप अपना फेथ लेके बैठ जाएंगे, आपका लाइफ स्मूथ रन नहीं करेगा. आपको अपना फेथ एक्शन में डालना पड़ेगा, आपको अपना फेथ बोलना पड़ेगा, आपको अपना फेथ को क्या कहते हैं रमा करना पड़ेगा ताकि योर लाइफ गो स्मूथ. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रायल्स चले जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. लाइफ आपकी अच्छी हो जाएगी, ये नहीं कर लाइफ अच्छी नहीं हो जाएगी, लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बट यू विल हैव पीस इन ट्रायल्स. एंड फिर मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं दैट फेथ कैन मूव माउंटेन्स. नहीं, फेथ कैन मूव गॉड. कितने ने सुना है कि लोग बोलते हैं फेथ कैन मूव गॉड? कितने ने सुना? मैंने सुना. हाँ मैंने कितना मैंने काफी से सुना फेथ कैन मूव गॉड, फेथ कैन मूव गॉड. बट डू यू थिंक फेथ कैन मूव गॉड? आपको लगता है फेथ कैन मूव गॉड? नहीं, ना आपका फेथ, ना मेरा फेथ, ना दुनिया का मिला के फेथ इतना पावरफुल है कि हम खुदा को उनके सिंहासन में खड़ा करा दें, खुदा हमारे लिए काम करे. नहीं, बट व्हाट आई बिलीव इन इज God honors bold prayers. Faith cannot move God. Faith is not powerful. Faith is powerful to get that mountain away. Faith is powerful कि जो sickness है, जिस sin से आप जूझ रहे हो उसको दूर कर दे. लेकिन मैं कहता हूँ कि faith खुदा को ये नहीं कह सकते मैंने faith रखा है खुदा ने मेरे लिए काम कर दिया. नहीं, आपने faith रखा and but God saw something in you and तब खुदा ने आपके लिए वो miracle दिया. तभी मैं कह रहा हूँ God honors bold prayers. जल्दी से खत्म करते हैं फिलिपियंस. लेकिन आप पूछेंगे अच्छा केनेथ मुझे ये बताओ हम बोल्ड प्रेयर्स करेंगे कैसे, हम बोल्डनेस लाएंगे कहाँ से? फिलिपियंस 4:66 में लिखा है डोंट वरी अबाउट एनीथिंग
But in all your prayers, ask God for what you need, always asking Him with a thankful. Worry mat karo. Don't waste your time and worry. But what you can do is pray about anything, asking God that you need. Life can be filled with tragedies. Life can be unpredictable. Life can be lifeless. However, in this time, if you take on the load of tension on you, आप अपने आप को होल्ड नहीं कर पाओ. अगर आप ये बोलने शुरू करोगे क्या हो गया मेरे साथ, ये क्यों होता रहता है मेरे साथ, मैं ही ऐसा हूँ, मैंने पता नहीं ऐसा क्यों कर लिया. लोग अपने आप को बुरा बोलना शुरू कर देते हैं. मैं ही ऐसा हूँ, मेरी जिंदगी ऐसी है, आसपास के लोग ऐसे हैं. नहीं, हमें ये चीज नहीं बोलनी. जिंदगी कैसी भी हो, अगर हम बोलते हैं कि हम खुदा को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो होता क्या है, हमारी जो दुआ होती है, जिसको मैं बोल्ड प्रेयर कह रहा हूँ, जो हमारे अंदर की बोल्डनेस होती है, जो होली स्पिरिट के थ्रू हमें मिलती है, वो बोल्डनेस रुक जाती है. हम कहते हैं ना कि हम इंग्लिश में एक वर्ड होता है स्केडी क्रो. कुछ लोग बोलते हैं स्केडी काउ, स्केडी क्रो. स्केडी क्रो मतलब बिल्कुल डरपोक. अगर हम अपने ट्रायल से हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही है उनसे डरने लग जाएंगे, तो हम क्या कहते हैं, डरने वाला खिलाएंगे. भाई ये तो डर जाता है, ये तो इसका दिल बहुत छोटा है, जिगरा बहुत छोटा है. लेकिन जब हम फेथ रखते हैं, एंड जब हमने वर्स पढ़ी फिलिपियंस 4:6, praying to God with a thankful heart. आपको पता है हम कब फेथ रख सकते हैं? हम फेथ तब रखते हैं कि जब खुदा ने मेरे लिए बहुत अच्छा करा, खुदा ने मुझे एक गाड़ी लेके दी, खुदा ने मुझे एक अच्छी वाइफ दी, एक अच्छा स्पाउस दिया. आई एम वेरी थैंकफुल, आई हैव फेथ इन गॉड. लेकिन ट्रायल्स में क्या हम फेथ रखते हैं? बहुत बहुत कम. मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं रख सकता हूँ. मुझे मुश्किल होता है. इट्स टफ कि आप फेथ रखना ट्रायल्स में. लेकिन आप बोल्ड प्रेयर्स तब प्रे करेंगे कि बोल्ड प्रेयर्स प्रे कैसे करेंगे, बट आई एम टेलिंग यू दिस थिंग. आप बोल्ड प्रेयर्स तब कर सकते हैं जब आप फेथ में कहते हैं, गॉड आई एम गोइंग थ्रू दिस मेडिकल सिचुएशन, बट थैंक यू दैट यू हैव ऑलरेडी हील्ड मी. God, thank you that you have already done for me. God, thank you that you have already done for me. जब आप faith रख रहे हैं, faith is looking beyond the horizon. Faith is looking beyond the horizon. आज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपके लाइफ में कुछ हो रहा है, don't just keep faith. मुझे नौकरी नहीं मिल रही. अच्छा, तो आपको let's take an example. अगर आप ये बोलते हैं कि मुझे नौकरी चाहिए, चलो आशीष अंकल, I'll ask this to you. अगर आप कहते हैं I need a job, I need a good job, लेकिन आप कहते हैं कि लेकिन अगर आप इंटरव्यू नहीं देते तो आपको जॉब मिल जाएगी? No, डू यू थिंक कि No. कंपनी वाले आपको जॉब ऑफर लेटर एकदम से आपके भेज देंगे गुरुग्राम? no. No, you have to give an interview. You have to stand in front of them and say, yes, I can do this job. Stand in front of them with boldness. इसी तरह जब हम अपने ट्रायल्स में होते हैं, आई वांट टू टेल यू कि जब हम अपने ट्रायल्स में होते हैं, हम सोचते हैं कि बस मैंने तो ईमान रख लिया, अब खुदा करेगा हर चीज. आई से नो. खुदा ने ही करना है. खुदा नहीं करना, खुदा नहीं करेगा, खुदा ने ही करना है. लेकिन अगर आप फेथ अपने एक्शन में नहीं डालोगे, क्या मिलेगा? कुछ नहीं. You'll get nothing. कुछ नहीं मिलेगा. Put your faith in action. जब आप अपना फेथ एक्शन में डालोगे, you will be praying bold prayers. आप कहोगे, खुदा थैंक यू दैट यू हैव गिवन मी गुड हेल्थ. एंड मैं काफी देख सकता हूँ, एंड देयर काफी ओल्ड पीपल बैठे हैं इधर, काफी जवान बच्चे बैठे हैं इधर, तो काफी काफी हर एज का बैठा है. तो आई वांट टू टेल यू कि इवन इफ यू आर इन योर ओल्ड एज, से थैंक यू गॉड दैट यू हैव गिवन मी अ गुड हेल्थ. इवन तो अगर आप
इवन दो अगर आप में आपकी डायबिटिक रिपोर्ट ज्यादा आ रही है, आपका इंसुलिन ज्यादा आ रहा है, आपका कुछ ज्यादा आ रहा है, आपका कुछ ज्यादा आ रहा है, नो से गॉड थैंक यू दैट यू हैव गिवन मी गुड हेल्थ। एंड काफी यूथ बैठे हैं, से गॉड थैंक यू दैट यू हैव पुल्ड मी आउट ऑफ दिस सिन। आज का यूथ, मी इंक्लूडेड, आर वेरी ससेप्टेबल टू सिन। अरे उसका नया गाना है, चलो सुनते हैं। अरे वो वाली नेटफ्लिक्स की सीरीज आई है, ये अपना नेटफ्लिक्स का अकाउंट देना, मुझे देखनी है। फिर हम चोरी छुपे देख रहे होते हैं, चोरी छुपे देख रहे होते हैं कि I'm telling you, me included, youth is really susceptible इस टाइम पे। So youth काफी है। Say God, thank you that you have kept me safe. अगर आप किसी sin से जूझ रहे हैं, say God, thank you that you have already paid the price for this sin. Even though I'm struggling in this sin, I'm already out of that sin. And आखिरी में बोलना चाहूंगा कि कभी भी इन लाइफ हो सकता है किसी कोई 90 का हो, कोई 50 का हो, कोई 40s में हो, कोई 20 का हो, कोई अपने टीनेज ईयर्स में हो, कोई 10 का हो, किसी भी साल का हो। आई एम टेलिंग यू, कभी भी आपकी लाइफ में बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। इनविटेशन नहीं देता बुरा वक्त। आदित्य, मैं आने वाला हूँ, कल मिलूंगा सुबह, ठीक है? कल मिलूंगा सुबह, कल तुम्हें टीचर्स डांट पड़ेगी, ये होगा वो होगा, एंड स्टे प्रिपेयर्ड। नो, कुछ भी हो सकता है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। सो कभी भी मैं आपको जो बता रहा हूँ, पुट योर फेथ इनटू एक्शन। कभी भी ये मत कहना कि मैं नहीं डालता। कभी भी आप ये मत कहना कि मैं थोड़ा लेजी हो जाता हूँ, खुदा कर लेगा। अरे खुदा, मेरा ईमान है तो खुदा, माय हार्ट इज ओपन फॉर यू, आप कर लो। नहीं, खुदा नहीं करने वाला। गॉड वांट्स टू सी, गॉड वांट्स टू डू समथिंग, गॉड वांट्स यू टू सी, गॉड वांट्स टू सी दैट यू आर प्रैक्टिसिंग योर फेथ। पुट योर फेथ इनटू एक्शन। नाउ दूसरा होता है कि मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ कि पुट योर फेथ इनटू एक्शन, पुट योर फेथ इनटू एक्शन। एक रीजन है कि that you would receive boldness and boldness would be seen in your life. दूसरा, जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, अब आई डोंट नो मम्मी पापा ने ऐसा करा होगा, मेरे साथ ही नहीं, लेकिन मैं कभी ऐसा कर, लेकिन फॉर एग्जांपल हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि आई होप दैट पर्सन ऑनर्स दैट गिफ्ट। फॉर एग्जांपल मेरे कजन का बर्थडे था एंड ही सेड कि, एंड मैंने मम्मी को तो, मम्मी मैं उसके लिए रिमोट कंट्रोल कार लेके आऊंगा। एंड अगर आप देहरादून जानते हैं तो यहाँ पर पलटन बाजार है। मैंने पूरा पलटन बाजार देख लिया, मैंने हर दुकान देख ली। रिमोट कंट्रोल कार तो मिल रही है, बट देयर इज नथिंग गुड इन इट। 500 में इतनी सी, एंड इतनी बड़ी बड़ी, तो उनका दाम भी इतना बड़ा बड़ा। मैं मम्मी के पास आता हूँ बिल्कुल शाम को थका मांदा, मम्मी रिमोट कंट्रोल कार नहीं मिली। मम्मी कहती है, अरे तू जिसके लिए रिमोट कंट्रोल कार देख रहा है वो लड़का है, 7 साल का है। एंड लड़के होते हैं डिस्ट्रक्टिव, जहां गुस्सा आया, जहां उसको मस्ती है, एकदम उठा के फेंक देगा, एंड इट ब्रेक्स। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाता है। तो हम जब भी किसी को गिफ्ट देते हैं, हम हमेशा देखते हैं कि आई होप ही कीप्स इट प्रॉपर्ली, वो उसको मिसयूज ना करे। फॉर एग्जांपल आशीष अंकल, मैं सोचता हूँ आशीष अंकल, मुझे मेरा बड़ा मन कर रहा है मैं आशीष अंकल को आईफोन 15 प्रो मैक्स लेके दूंगा। सो लेने से पहले मैं दाम तो देखूंगा, दाम तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं ये देखूंगा आई होप आशीष अंकल ऑनर्स इट। आई होप आशीष अंकल जो मैं फोन दे रहा हूँ, आशीष अंकल उसको सही तरीके से यूज करे। ऐसा ना हो कि कहीं घर में हथौड़ी खो गई तो कहीं अंकल ने फोन से कील ठोक दी अंदर। ऐसा ना हो कि कहीं, आई होप ही इज नॉट मिस यूजिंग इट, आई होप ही इज नॉट, ऐसा तो नहीं कहीं ऐसे थोड़ा उछाल उछाल के खेल रहे हैं उससे, नहीं। आई विल मेक श्योर कि आशीष अंकल या हम किसी को भी गिफ्ट देते हैं, ही यूजेस इट वाइजली। एंड जब भी आपके लाइफ में ट्रायल्स आते हैं तो खुदा देखना मांगता है। अगर कह रहे हैं खुदा मुझे जॉब चाहिए, खुदा मुझे बाहर जाना है, खुदा मुझे ये चाहिए, खुदा मुझे इस पाप से निकाल, खुदा आपको निकालेगा, खुदा ने निकाल चुका है, बिकॉज दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड। बट ही वॉन्ट्स टू सी यू स्ट्रगल, ही वॉन्ट्स टू सी योर फेथ, ताकि खुदा जो आपको ब्लेसिंग देने वाला है, खुदा जो आपको चीज देने वाला है, आप उसको मिसयूज ना करो। कहीं ऐसा तो नहीं कि
जब मैं पवित्र आत्मा में बढ़ रहा था, मैं खुदा में बढ़ रहा था, खुदा ने मुझे मैं मम्मी से बोलता था, मम्मी मुझे मुझे मेरे पास विजन्स नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मैं बहुत कम बोलता था, सोचता जाता था। तो एक दिन पता नहीं मम्मी ने बोला, किसने बोला या मैंने ऑनलाइन सुना था कि अ, जब खुदा आपको गिफ्ट देता है, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, खुदा आपको कभी भी एकदम से नहीं दे देगा, ये लो बेटा थैली आपके लिए, इसमें हीलिंग का, डिलीवरेंस का, प्रोफेसी का, सबका गिफ्ट है। नहीं, खुदा आपको टेस्ट करेगा। खुदा देखेगा कि इज ही ओके? इज ही वाइज इनफ? इज ही बिग इनफ टू हैंडल दैट गिफ्ट? इसी तरह जब आप अपनी लाइफ में खुदा से कुछ मांगते हैं, खुदा आपको एकदम दे देगा। खुदा आपको आपने दुआ करी एकदम खुदा ने कहा लो, ऐसा होता है। ऐसा होता है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं होता। ऐसा सबके साथ होता है, सबके साथ होता है। समटाइम्स गॉड गिव्स यू इंस्टेंटली एंड समटाइम गॉड वेट्स। क्यों? बिकॉज़ गॉड वांट्स टू मेक श्योर कि अगर मैं इसको हीलिंग का गिफ्ट देता हूँ, ऐसा तो नहीं कि ये अपने आप में प्राइड आ जाएगी इसको हीलिंग करके, 2 लोग हील करे और अपने आप को प्राइड आ गया। ऐसा तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि मैंने इसको एक अच्छी जॉब दे दी, एक अच्छा स्पाउस दे दिया, एक और मैंने इसको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया एंड देन ही फॉरगेट्स मी एंड दैट्स यूजलेस. That blessing is useless until and unless you don't go through trials, until and unless you don't put your faith into action, you won't see, you won't receive, you won't see miracles in your life. जल्दी से एंड करूंगा, जल्दी से एंड करते हैं, फिर दुआ में चलेंगे हम. सो कुछ वर्सेस हैं, नेवर माइंड, मैं सब इन वर्सेस को मैं आई वुड बी सेंडिंग, मैं आशीष अंकल को या शालिनी आंटी को भेज दूंगा सो दैट वो आपको इन वर्सेस के थ्रू आपको कनेक्ट करें इन वर्सेस के थ्रू. सो फर्स्ट वर्सेस, as you're living your life, fight the good fight of faith. 1 Timothy 6:12. Fight the good fight of faith. दूसरा है 1 Corinthians 15:58. So then, my dear brothers, stand firm and steady. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do the Lord in the Lord's service is useless. जो भी आप खुदा के लिए करते हैं, कभी ये मत सोचेगा बस हवा में कर दिया, खुदा ने देखा नहीं. नहीं, खुदा में किया हुआ परिश्रम कभी भी खाली नहीं जाता. Remember that. दूसरी वर्स 1 Peter 5:10. But after you have suffered for a little while, the God of all grace, who calls you to share his eternal glory in union with Christ, will himself perfect you and give you firmness, strength and sure foundation. तो ट्रायल्स जो होते हैं वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं. You have to endure and after that trial खुदा आपको अपने आप perfection दे दे. आखिरी वर्स 2 Corinthians 4:17. And this small and temporary trouble we suffer will bring us tremendous and eternal glory much greater than the trouble. जिस भी चीज के आप थ्रू जाते हैं, remember every trial is important because the bigger the trial, the bigger the gift. ऐसा नहीं कहना small the trial, small the gift. वो small gift ही बहुत बड़ा होगा आपके लिए. But remember, bigger the trial, bigger the gift. So आइए हम दुआ करते हैं and let's allow the Holy Spirit to press that sermon in हम सब के अंदर. मैंने बोला है मेरे अंदर भी, आपने सुना है आपके अंदर. Let's pray. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस समय के लिए. धन्यवाद करते हैं. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, माय प्रेशियस होली स्पिरिट. आप छुएं हर किसी को, आप छुएं हर जिस जगह पे लोग बैठे हैं प्रभु जी. एंड फादर, प्रेस दैट सर्मन इनसाइड. होने पाए कि जो सर्मन है ये एज अ एनग्रेविंग, एज अ कार्विंग हमारी लाइफ में बन जाए प्रभु जी. होने पाए it gets carved into me and carved into us, into every person listening, so that आगे जाके जब भी लाइफ में ट्रायल्स आते हैं फादर, होने पाए कि ये जो सर्मन है, ये जो मैसेज आपने दिया है हर किसी को, वो उस टाइम पे उस ट्रायल में इस मैसेज को प्रभु जी देखने पाए, प्रभु जी यूज में डालने पाए प्रभु जी. एंड फादर, लोग जहां पर भी हैं, लोग जिस भी चीजों से जूझ रहे हैं फादर, आई इनवाइट यू एंड स्पीक योर हीलिंग राइट नाउ इन जीसस नेम. आप में से कोई भी जिस भी जगह कहीं पे भी इसको आपको हीलिंग चाहिए, जस्ट अलाउ द होली स्पिरिट एंड कीप योर हैंड ऑन इट. जिस भी जगह में आप अपना हाथ रखें and pray that Holy Spirit is healing you, and say, and in faith say, thank you Father that you have healed me.
एंड फादर जिनकी भी लाइफ्स में कोई evil spirits, किसी भी तरह का demonic influence है, right now in the mighty name of Jesus Christ, Holy Spirit आप उस चीज को हटाएं, and right now in the mighty name of Jesus I speak the holy fire right now in Jesus name, जिसकी भी लाइफ में है, right now in the mighty name of Jesus Christ I cancel that every attack of that demon, health पे, life पे, financially, right now in the mighty name of Jesus Christ, यीशु के नाम से भी जाता है, right now in Jesus name, Father, I speak your healing, I speak your deliverance right now in Jesus name, यीशु के नाम से, right now in the mighty name of Jesus Christ, धन्यवाद करते हो, हर एक चीज प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। आशीष अंकल खुदा कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर, आशीष अंकल खुदा कह रहे हैं कि दैट नेक्स्ट ईयर आई एम पुटिंग समथिंग इन योर हार्ट, बट गॉड इज शोइंग मी, आप बैठे हैं and आपके शोल्डर्स ऐसे करके जो शोल्डर्स हैं उस पे एक वाइट कलर की लाइट है, एंड व्हाट आई कैन सी दैट गॉड इज प्लांटिंग दैट सीड इन यू। हो सकता है आपके माइंड में आए, हो सकता है जो भी चीज आए, बट व्हाट आई कैन सी, व्हाट आई कैन, द वर्ड जो खुदा ने दिया है, आई प्रे दैट होली स्पिरिट आपको वर्ड अभी के अभी दे। फादर लेट दैट वर्ड सिंक इन हिम, फादर जो चीज आपने दी है प्रभु जी होने पाए कि वो उस वर्ड को समझने पाए। फादर फादर होली स्पिरिट हेल्प हिम टू रिसीव दैट, गिव हिम दैट वर्ड right now in Jesus name, right now in Jesus name, right now in Jesus name. And मीनू आंटी जो मैं आपके लिए देख रहा हूँ, जो खुदा मुझे आपके लिए दिखा रहे हैं, I don't know, and what I can see is your torso part, torso मतलब chest and stomach area, पूरा आपका lower abdomen and chest, but God is showing me there is a blue color mist, blue color mist मतलब healing, and जो खुदा दिखा रहे हैं there is something here, कुछ chest में, stomach में, कहीं पे भी there is something here, and खुदा कह रहे हैं I'm healing that, और I can see जहाँ lungs खत्म होते हैं and जहाँ आपका जहाँ रिब केज खत्म होता है and where the stomach starts, वहां पर खुदा कह रहे हैं कि that he is healing you। धन्यवाद करते हैं, फादर टच करें right now in Jesus name। Thank you Father, thank you Father, धन्यवाद करते हैं, and खुदा कह रहे हैं रूमा next year, खुदा कह रहे हैं I'm going to plant a seed of finance। अब I don't know if you need finance, I don't know अगर अगले साल आपको कभी जरूरत पड़ती, but God is saying Ruma, I'm planting a seed of finance in you, you will see overflowing finance in your life, खुदा कह रहे हैं overflowing life, overflowing finance in your life next year, खुदा कह रहे हैं आप इसको रिसीव करें। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। एंड शिप्रा आंटी, एंड आई डोंट नो, आप हो सकता है खुदा से कुछ दुआ कर रही हैं, हो सकता है आपके कब से ये दुआ है, बट व्हाट गॉड इज टेलिंग मी दैट यू आर प्रेइंग रिगार्डिंग जॉब, जो खुदा कह रहे हैं, खुदा कह रहे हैं, खुदा मेरे वर्क जो वर्ड दिया प्रेइंग फॉर जॉब, खुदा कह रहे हैं आई डोंट नो, हो सकता है कि आपकी प्रेजेंट जॉब में कुछ हो, या इफ यू आर सीकिंग अ जॉब, आप कोई जॉब देख रहे हो, बट गॉड सेज आई हैव, कैसे बताऊं मैं आपको, व्हाट आई कैन सी इज एक पुराना जैसे पुराने चर्चेस होते थे, उसी तरह का एक पुराना आई वुड से एक ऑफिस है, एक स्कूल है, आई डोंट नो, बट इट इज समवॉट लाइक जैसे चर्च होता था, एक लंबा सा आता है, एंड देन देयर इज अ वहाँ क्रॉस होती है या जो चर्च का घंटा होता है, एंड देन और फिर वो टेपर होता है, एंड देन द जो नीचे वाली जो फाउंडेशन होती है वहां से वॉल्स आती हैं। व्हाट आई कैन सी इज दैट गॉड इज प्लांटिंग यू इन अ प्लेस जहाँ खुदा की उपस्थिति और खुदा की मर्जी होगी, जो खुदा कहते हैं।
खुदा कह रहे हैं कि जो मैंने दिखाया दैट इज अ चर्च, बट खुदा कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि यू विल गेट समथिंग, you will get a job in church. खुदा कह रहे हैं you will get a job where my presence would be. My presence will bank upon that place. खुदा कह रहे हैं कहीं भी हो सकता है. खुदा कह रहे हैं but I'm gonna give it. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. शालिनी आंटी खुदा कह रहे हैं कि I'm giving you and filling you with an intercessory gift. I'm filling you with an intercessory gift. खुदा कह रहे हैं you will pray for people. खुदा कह रहे हैं you will come on your knees. खुदा कह रहे हैं ये वाली बात मैंने पहले ही बोली थी 1 साल पहले. If you can remember. सुबह की मीटिंग थी. I gave the same thing. And खुदा कह रहे हैं I'm giving you again. Intercessory gift. Intercessory gift right now in Jesus' name. Father, we impart, and Father, let it be that she may receive it in full. Father, right now in Jesus' name. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. And Joshan Bhaiya, what God is showing me for you is I can see you standing on a very wide road. It's really wide, really, really, really wide. What I can see is really wide, and you're standing in the middle, and you're walking on that road. And God is saying that your future is going to be wide. New things are going to be opened, new ways are going to be opened, new blessings, new areas are going to be opened in your life, and you will feel I'm working here, I'm working there, but God is telling you that I would be giving, I would be in everything that you're going through, would be going through, whatever jobs that you will receive, whatever things that you would be doing. God is saying you will be doing for me. Okay, and God is saying next year this thing is going to happen next year. Next year you will get into a process where you would be going into all these places where where the light and the glory of God has to shine. You'll be thinking, I'm doing this, I'm doing this, I'm doing this. But God is saying you would be doing it for me. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं. And Father, किसी को भी अगर healing चाहिए, Father, give healing to that person right now in Jesus' name. And नानी, वीना नानी खुदा आपके लिए कह रहे हैं कि that you are sitting here, but लेकिन आप को जॉइंट पेन होता है. जो खुदा दिखा रहे हैं नानी, आपके जो घुटने हैं, वहां पर आपको जॉइंट पेन होता है, आपसे चला नहीं जाता. आपको लगता है कि अब लगता है कि टांगों में जान खत्म होगी, बट गॉड इज सेइंग आई एम फिलिंग यू विद समथिंग न्यू, गिविंग यू न्यू स्ट्रेंथ. धन्यवाद करते हैं नानी. जो मैं आपके लिए देख रहा हूँ, और आई कैन सी आप बैठे हो अपने बेड पे, एंड यू लुकिंग एट योर फीट, एंड खुदा कह रहे हैं आई एम फिलिंग यू विद माई स्ट्रेंथ. फिलिंग यू विद माई स्ट्रेंथ. अंकित जेकब, क्यों इतना टेंशन में रहते? आई एम कॉलिंग यू आउट. अंकित जेकब, क्यों इतना टेंशन में रहते? क्यों कहते हो कि मेरी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, खुदा ये नहीं हो रहा, खुदा ये क्यों हो गया? खुदा कह रहे हैं कि why do you consult the problem? Why do you get addicted to that problem and say खुदा मेरी लाइफ में ऐसे क्यों हो गया? And ये जो चीजें आपके माइंड में चलती रहती हैं, खुदा कह रहे हैं कि for weeks and weeks you keep on thinking over one thing. खुदा कह रहे हैं सोचते रहते हो, इतना सोचते हो कि you get stressed up. You might be getting delivered every day when you pray. लेकिन खुदा कह रहे हैं, are you allowing that deliverance to go up into your head? Are you allowing that deliverance to push that tension out of your life? खुदा कह रहे हैं, allow that deliverance to push that thing out of your mind. Allow the Holy Spirit to push it. धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद.
एंड नेहा शाह खुदा आपके लिए कह रहे हैं, जो खुदा ने मुझे बताया आपके लिए, इट इज समथिंग दैट यू विल रिसीव अ ब्रेक थ्रू, प्रोफेशनल एंड पर्सनल, two things, professional and personal. You will receive a breakthrough in your life, professional and personal. खुदा कह रहे हैं। खुदा कह रहे हैं कि आपको लग रहा हो कि ऐसा तो नहीं मुझे ये हेल्थ हेल्थ कंडीशन हो जाएगी, ऐसा तो नहीं मुझे वो हेल्थ कंडीशन हो जाएगी, बट खुदा कह रहे हैं नहीं होगी। आई एम गोइंग टू ब्लेस यू एंड गिव यू ब्रेक थ्रू। धन्यवाद करते हैं। एंड फादर, जो और भी लोग बैठे हैं, फादर ब्लेस देम फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एंड खुदा कह रहे हैं जीना, आई एम कॉलिंग यू जीना, आप जहां पे भी हैं, खुदा कह रहे हैं आपको लग रहा होगा कि आपकी लाइफ बिल्कुल इट्स गॉन, इट्स गॉन, ना इधर की ना उधर की। आई इन अ प्लेस की मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन खुदा आपको कह रहे हैं कि इफ टुडे यू गिव योर लाइफ टू मी, इफ टुडे यू गिव योर, इफ यू कॉल, इफ यू, मेरा हाथ ऐसे है खुदा, दिस इज व्हाट माय हैंड लुक्स लाइक इन फ्रंट ऑफ, खुदा कह रहे हैं इफ यू प्लेस योर हैंड लाइक दिस एंड यू अलाउ मी टू टेक यू थ्रू ग्रीन ग्रास pastures, you will know what peace is. मुझे नहीं पता, जो मुझे दिख रहा है आपका आपका लिविंग रूम है, एंड जो खुदा मुझे दिखा रहे हैं, आप बहुत टेंस्ड हैं, आप बहुत एक लड़ाई झगड़े का माहौल मुझे दिख रहा है। खुदा कह रहे हैं इफ यू गिव योर लाइफ टू मी, यू विल नो व्हाट इज पीस। धन्यवाद करते हैं ईश्वर। हर एक चीज प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। फादर, आई स्पीक हीलिंग ओवर पीपल, फादर आई स्पीक डिलीवरेंस ओवर पीपल, फादर हर एक चीज प्रभु जी मैं आपके हाथ में देता हूँ। एंड नलेशा, खुदा कह रहे हैं दैट आगे की जो जिंदगी है, आगे की जो लाइफ है, गॉड सेज you are walking on gold streets, you are walking on gold, और I can see एक एक सड़क है गोल्ड, पूरी गोल्ड, पूरी पूरी सोने की सड़क है, एंड यू आर वॉकिंग ऑन। खुदा कह रहे हैं राइट नाउ यू माइट बी इन 6th 7th और 8th, किन्हीं किन्हीं एक क्लास में, लेकिन गॉड इज सेइंग दैट आगे का जो लाइफ है, इट इज गोइंग टू बी ऑन गोल्ड। मुझे नहीं पता आपने आगे करियर में क्या सोचा है, मुझे नहीं पता आपके मम्मी पापा ने आपके लिए क्या सोचा है, लेकिन गॉड इज सेइंग इट इज गोइंग टू बी गोल्ड। जो खुदा कह रहे हैं वर्शिप, वर्शिप लीडिंग, खुदा कह रहे हैं जो वर्शिप लीड आप करोगे आगे जाके, खुदा कह रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी गोल्ड, एंड आई एम गोइंग टू, व्हेनेवर यू वर्शिप, जो खुदा मुझे दिखा रहे हैं, यू आर सिंगिंग, अभी नहीं, यू आर सिंगिंग, एंड जैसे जैसे आप क्या कहते हैं, आप गाना गा रहे हो, आप मतलब व्हाट आई कैन सी, आप अभी जो आपकी जो अभी एज है 12 13, नो, आप उस एज के नहीं हो अभी, व्हाट आई कैन सी यू आर इन योर mid 20s 25 26, what I can see, लेकिन आप गा रहे हो, you're standing on a stage, there are people sitting, you're singing, and what I can see is there's gold flakes, छोटे छोटे gold flakes coming out of your mouth, खुदा कह रहे हैं। अभी कभी ये मत सोचना कि मम्मी मैं गाना नहीं गाऊं, खुदा कह रहे हैं if you say that, I will pull you into the meeting and tell you to sing, because I want you to sing, खुदा कह रहे हैं। धन्यवाद करते हैं सारी चीजें जो आपने बोली हैं प्रभु जी, जो भी चीजें आपने बोली है, फादर वी seal them into people's life, फादर हर एक चीज आपके हाथ में देते हैं। एंड फादर जब लोग अपने बिछौनों पे जाते हैं प्रभु जी, अपने रात रात में सोने जाते हैं प्रभु जी, आप प्रोटेक्टेड रखें, बचाए रखें। खुदा कह रहे हैं there are people who need healing and they have received healing, खुदा कह रहे हैं there are people need healing and they have received healing,
people need deliverance, they have received deliverance. खुदा कह रहे हैं in this meeting you have, आप उसको receive करें and don't let Satan take that seat of you. हर एक चीज आपके हाथ में देते हैं, हर एक चीज आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर हर एक चीज की। एंड मधु आंटी, मधु चौहान आंटी, जो मैं आपके लिए देख रहा हूँ, जो खुदा ने मुझे दिखाया, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग। मैं से बताऊंगा आपको, दिस इज वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड दिस इज द एरिया। आपको नोटबुक में तो छोटा लग रहा होगा, लेकिन जो खुदा ने मुझे दिखाया, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। खुदा दिखा रहे हैं, यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, यू हैव मेनी इयर्स टू लिव। जो खुदा दिखा रहे हैं, आपको लग रहा हो कि I'm quite old, काफी एज हो गई, बट गॉड सेज यू आर स्टैंडिंग हियर। एंड जितने आपने लाइफ जी ली है, जितना आपने इयर्स पास्ट में है आपके, दैट इज ऑल ग्रीन, बट द इयर्स टू कम आर ऑल इन येलो, एंड येलो मीन्स दे आर ऑल रेडी फॉर यू। लॉन्ग लाइफ, गॉड सेज आई एम गोइंग टू ब्लेस यू विद लॉन्ग लाइफ, एंड इट्स लॉन्ग, बहुत लंबा, गॉड सेज। और हर एक चीज प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद करते हैं। एंड फादर, bless everyone, bless this meeting, bless the ministry. We pray this prayer in Jesus' name. Amen. Thank you everyone. Amen. Thank you so much, Aditya. May God bless you. And first, I'll summarize the thing, and then I'll tell something else. और आज आपने जो टॉपिक लिया है, faith needs to be in process or action. मेरी लाइफ का ये मतलब इससे फेवरेट टॉपिक या इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं हो सकता है। एंड आई ऑलवेज मेडिटेट ऑन दिस टॉपिक, व्हाट नीड्स टू बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग फेथ इन माय एक्शन। एंड यू हैव, आपने बहुत साधारण शब्दों में बहुत कुछ समझाया है। एंड नाउ कमिंग बैक टू दैट वर्ड यू वर स्ट्रगलिंग, कि परमेश्वर ने मुझे वो कौन सा वर्ड दिया है। आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। आज की शाम परमेश्वर ने जिस वक्त ये मुझे वर्ड दिया और इसको एलॉबरेट भी उन्होंने ही कराया, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग दैट वर्ड ऑल ऑफ यू। और हम सब शायद इस वर्ड के साथ बहुत संघर्ष कर रहे हैं। दिस वर्ड कैन बी आर employment, this word can be our sickness, this word can be our marriage life, this word can be anything. struggle, struggle. मैं भी हो सकता हूँ बहुत सारी चीजों से लड़ रहा हूँ, बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहा हूँ। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ हो, मेरी ब्रेड बटर की लड़ाई हो, क्योंकि अगर संसार में रहना है तो ब्रेड बटर के लिए भी फाइट करनी, दोस्त थिंग्स। बाइबल टाइम से नहीं पढ़ पा रहा हूँ, या 4:30 मॉर्निंग उठ नहीं पा रहा हूँ, शाम का डिवोशन नहीं हो पा रहा है, मॉर्निंग डिवोशन, चर्च नहीं जा पा रहे हैं, कभी लखनऊ है तो कभी गाजियाबाद है, ऑल दोस थिंग्स। हम सब के लाइफ में ये जो एक वर्ड है, इसने बहुत परेशानी, मतलब व्हाट डू वी कॉल, तबाही मचा रखी है। बट बिलीव मी, आज की शाम इस वर्ड को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतना खूबसूरत बना दिया है कि अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो ये वर्ड आपके जीवन, आप कहेंगे ये हमेशा मेरे साथ बना रहे ना। मैं अब इस पेज को ऊपर लेके जाता हूं। नाउ यू कैन सी श्योरिटी ऑफ टुगेदरनेस विद राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड, एंड गॉड विल लीड यू एंड एंड योर स्ट्रगल्स। स्ट्रगल इज नथिंग। हम शायद परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं पहचान पाते हैं, हम उसकी उस फेलोशिप को भूल जाते हैं। हमसे बड़ा विश्वासी कोई नहीं होता है, बट द मोमेंट हमारा यूनिट टेस्ट शुरू होता है, फॉरगेट हाफ ईयरली और ईयरली, हम उस परमेश्वर से, अरे परमेश्वर मैं ही क्यों। और परमेश्वर जब मेरा वीजा लगा देता है तब मैं नहीं बोलता हूं परमेश्वर मैं क्यों, मैं तो इस लायक भी नहीं था, मेरे तो इतनी वीकनेस थी, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, फिर भी आपने, मेरी डायबिटीज इतनी बड़ी थी और मेरे वुंड्स इतनी जल्दी, तब शायद हम ये बात नहीं बोलते। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फेलोशिप विद द गॉड इन आवर लाइफ।
अगर वो फेलोशिप हमारे परमेश्वर की हमारे साथ नहीं है, तो दिस स्ट्रगल कैन बी लाइक दिस, अदरवाइज दैट स्ट्रगल विल बी लाइक दिस। हम इस फेलोशिप को एंजॉय कर रहे होंगे और परमेश्वर हमारे साथ चल रहा होगा। और मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आज आप शाम को अपने डिवोशन में अपने अपने घरों में अगर फर्स्ट सैमुएल उसका चैप्टर 9 पढ़ें तो बहुत अच्छी चीज है। कीश का जो बेटा था, जहां पे जब साउल को शामुएल बुढ़ा हो चुका था, वो इजराइलीस बोल रहे थे कि हमें नया राजा चाहिए, और इधर कीश की गधे और भेड़ बकरियां चर करके वापस नहीं आए हुए होते हैं, और वो अपने सबसे हैंडसम बेटे को बोलता है कि एक सर्वेंट ले ले और जाकर के ढूंढ के ले आओ। वो बेचारा 3 दिन तक उस नौकर के साथ में, उसको क्या पता था मैं गधा ढूंढने निकला हूं और मुझे इजराइल का राजा बना दिया जाएगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। बट अगर वो उस दिन उस मॉर्निंग अपने डैड की आज्ञा मानने से मना कर दिया, अरे डैड कहाँ, मुझे और काम है, मुझे कॉलेज जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, ऑफिस जाना है, कॉल है, जूम पे मीटिंग है, बॉस वेट कर रहा है, अगर वो नहीं जाता उस अरे सर्वेंट को ही भेज दीजिए ना, रामू चला जाएगा ढूंढ के ले आएगा, ये तो रोज जाता है चराने, उनको गधे ही तो ढूंढने हैं। तो हम सब अगर उन गधों को ढूंढने नहीं निकले हैं तो बिलीव मी अभिषेक होना बड़ा मुश्किल है। नोबडी नोज, गॉड ओनली नोज कि कौन सा शैमुएल हमारे लिए बैठा और वो देख रहा है, परमेश्वर ने उसको प्रोफेसाइज किया हुआ है, उसको दर्शन दिया हुआ है कि देयर विल बी अ डे वन मैन और वन गर्ल तुम्हारे दरवाजे आएगा और तुम्हारी फेलोशिप में आएगा और तुम उसको क्या देने वाले। तो हमें वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मुझे लगता है कि हमारा फेथ विदाउट एक्शन डेड रहेगा। एक बड़े अच्छे फिटनेस फ्रीक ने ये बात बोली कि अगर हम अपने शरीर को 1 घंटा नहीं दे सकते हैं 24 घंटे में, तो हमारा मर जाना बेहतर है। उसने ये लाइन बोली, टू कीप फिट योर बॉडी। मैं कहता हूं अगर हम दिन में 10 मिनट भी बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं तो शायद हमारी स्पिरिचुअल लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। और परमेश्वर का वचन अगर हमारे जीवन में रिन्यू नहीं हो रहा है तो बहुत परेशानी का सबब है। और हम सब जानते हैं और हमने ये प्रैक्टिकली किया है, कितने लोग हैं जो आरओ का पानी बॉटल में बंद करके 1 महीने बाद उस बॉटल का पानी पी लेंगे? कोई है? पानी साफ था, बंद करके भी रखा था, फ्रिज में भी रखा था, फिर भी हम यही कहेंगे पानी फ्रेश ले लो, अब वो क्यों खराब हो गया? ये चीज हमें समझनी। तो नो मैटर, एंड थैंक यू आदित्य, दैट वर्ड वाज स्ट्रगल, एंड परमेश्वर ने बहुत अच्छे से इलॉबरेट किया और अभी के अभी किया। इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और उन सारी बातों के लिए धन्यवाद देता हूं। और आज एक बहुत अच्छी बात हुई है आशीष भाई के घर में कि उस छोटी ने आकर के प्रेजेंट वर्शिप करी है, एंड आई एम वेरी मच श्योर, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में कहता हूं आज की जो प्रेजेंट वर्शिप है इतने 2.5 सालों में सबसे ऊपर लिखी जाएगी और गिनी जाएगी बोल्ड अक्षर में, अंडरलाइन के साथ में। मे गॉड ब्लेस यू बच्चा, थैंक यू सो मच। और अगले टाइम काफी हो चुका है, सो आई विल एनकरेज ईच वन ऑफ यू कि अगर आप अपनी टेस्टिमनीज को नेक्स्ट वीक जरूर तैयार रखें, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग हमें मिली है, आई एम वेरी मच श्योर। एंड खास करके नेहा शाह, मैं परमेश्वर की सामर्थ्य में कह रहा हूं कि आप अगले हफ्ते अपने कैमरे को खोल करके बैठेंगी और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज आपने रिसीव करी हैं और अगले 7 से 8 दिनों में आप देखने वाली हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे। एंड डॉक्टर अनीता साचा, थैंक यू सो मच। अंकित जैकब साहब, थैंक यू। And Yunus auntie, thank you so much. And Madhu sister, may God bless you. Meenu Swaroop ji, thank you so much. And Shipra Bahan, thank you. Aditya bhai, thank you so much. And in last, I'll invite Brother Joshan for closing prayer and benediction, please. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy today? Hallelujah. How many of you have received the prophecy that God has given through the Son of God? Hallelujah. But the thing is that we have to be very careful because Satan has also heard this. Hallelujah. When we get this gift through the servant of God, I mean, it's like Satan will try to grab that. I mean, we believe in that and we think on that. We dream on that. But devil knows where he has to plan his trick to varnish these prophecies.
Hallelujah. I have seen and I have heard so many people telling me they heard this prophecy. So they keep on thinking on it. Amen. Hallelujah. Let God use the servant of God, the Son of God, more and more. The thing is that people make a big dream, big imagination. They don't pray. They don't hold that prophecy and pray. They just keep on dreaming. And Satan divert their mind and make them to do in a different way. And what they got in their life as a prophecy, they will pocket and they will go in another way. Then when it does not works, they will say, look, God was a liar. God gave me so many promises. God did this and that, and he said so many things, but nothing worked out. So what we have to do, what we have received from the Son of God, now we have to hold it tightly and pray until we get that prophecy fulfilled. Amen. Hallelujah. May God give you, amen. Hallelujah. Son of God mightily, and let's pray. Hallelujah. Because God is great. God has spoke to us clearly, giving us a beautiful message, and to enter the kingdom of God, and the things that we have, the things that happen in our life is not through money money belongs to the world. Things will happen. If you spend money, things will happen. But in spiritual way, if things should happen, we should have faith. That is what we heard today. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Let's our small faith that is 100%, not 99%, 100% in God. Amen. Let it be a blessing in our life. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, we thank you and praise you for this beautiful day, afternoon, evening that you have given. Thank you for speaking to us. Thank you for your guidance and your blessings, of God. Last 1 week, your presence and your love was there. Your care was there. Your presence was there. Thank you for everything that you have done in your life, mentally, physically, financially, and spiritually. I pray for the servant of God, Son of God, hallelujah. I pray for Kenneth, oh God, hallelujah. Let the Spirit of the Lord be with him. I want you to touch him, bless him, guide him. In this age, he preached and he gave the prophecy. Let it be more and more blessed and be anointed, oh God. I pray for his parents, bless them, oh God. Testimonies are there to share because you have done, miracles and healings in their life, oh God, because of, their faith, oh God. Use your Son of God, where he has to go, what he has to do, where he has to speak. My Father will control and guide him more and more in the name of Jesus. The world is end, but the kingdom of God is near. Use him mightily in the name of Jesus. Pray for Ashbaya, pray for Shanley, pray for Nilisha. Be with them, guide them, protect them. I pray for their ministry. It's not just a ministry, it's a blessed ministry. Hold your cross. Ministry, and for their, each and every steps of their life, whatever they do, wherever they go. In the name of Jesus, I completely pray and I seal with the blood of Christ, oh God. I pray for each and everyone who has attended this meeting, oh God. We all heard the manna that will be strengthening us in this coming week, oh God. We pray that you are going to do great things in our life. The prophecy and the revelation that we heard, it's not to build up the dream, but to build up our faith in Christ Jesus. In the name of Jesus, I pray that you're going to bless, you're going to heal, you're going to do a blessing and mercy, miracles in our life, oh God. We believe, hallelujah, we are not going to build up our dreams. We are going to build up our faith and the prophecy, what we heard. We are holding it and it's going to be blessed, oh God. Father, Son, and the Holy Spirit, be with us. Use us, bless us. Who is in pain, who is in worries, and who is in tensions, let that be answered in the name of Jesus. I want you to touch, heal, and bless. Submitting each and every one of them. I am not telling the names today, but you know the names who have attended. Who couldn't attend, be with them, oh God. This coming week should be a blessed and the best week to share the testimony next week that God has done in the name of Jesus. Father, Son, and the Holy Spirit, fire with the Holy Spirit. Fire us with your fire.
holy fire, and seal with the blood of Christ. Anoint with your oil. Keep us under your wings. Come in safely, O God, wherever we go, whatever we do, mentally, physically, financially, spiritually. Thank you for hearing your praise, answering your praise. In Jesus' name we pray and declare. Amen. 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 Thank you so much, Brother Joshan. And एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी है कि जनवरी में होल्ड योर क्रॉस एक वर्शिप देहरादून में प्लान करने का परमेश्वर ने हमें वो विजन दिया है, एंड डेट माइट बी 26 जनवरी का जो वीकेंड हो रहा है, 2 दिन का होगा। एंड आज अभी हम लोग अक्टूबर में बैठे हैं और हमारी प्रिपरेशन शुरू हो गई है। वी आर नेगोशिएटिंग द वेन्यूज की कितना कम से कम खर्चा उन 2 दिनों का 2 नाइट स्टे का आ सकता है। सो जितने लोग भी फेसबुक पे हमारे साथ हैं और जितने लोग जूम पे भी हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज परमेश्वर से पहले तो प्रार्थना करिए कि परमेश्वर की क्या मर्जी है इस काम में, और हमारे लिए दुआ करिए कि हम उन सारे अरेंजमेंट्स को करने वाले हो सके। यस, देयर विल बी अ नॉमिनल कॉस्ट दैट माइट बी 1000 रुपीज और 1200 रुपीज। मैं इसको भी और कट डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें 2 नाइट स्टे एंड विद ऑल दोज फूडिंग एंड लॉजिंग। एंड हम लोग परमेश्वर के इस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के जो दास आए हमारे बीच में वचन को लेकर के, वो हम सब के लिए आशीष का कारण बने। सो दैट इज विजन जो हम पिछले काफी समय से देख रहे थे। हम दुआ कर रहे हैं कि ये जनवरी में पूरा हो सके, और आप सब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस बात के लिए दुआ करें। और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, एक ऑफिशियल इन्विटेशन सबके पास में जाएगा, बट दुआ करिए और अपने आप को तैयार करिए कि हम लोग मिल सकें 101 इस जूम से निकल करके, तो बहुत अच्छा हो। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। अगले सैटरडे हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ। थैंक यू।